Very good evening, Sanjeev ji. Good evening, Bhaiya. A very heartiest and warm welcome to you for the session. Because in spite of your busy schedule, you have come out with your time for us. Thank you so much. I welcome all the participants along with the learned speakers here. Mr. Sanjeev is a tech-savvy fellow chartered accountant with 22 years of experience as an entrepreneur in international fintech industry. Presently, he works with hundreds of overseas clients and provides an end-to-end tech-based consulting and accounting solutions. A multifaceted personality, he is presently the co-opted member of Digital Accounting and Assurance Board of the Institute of Chartered Accountants of India and chairman of the IT Committee of the Association of Corporate Advisor and Executives, Merchant Chamber of Commerce and Industry, and advisors to other reputed forums. He has formerly served as the Secretary of the Eastern India Regional Council of the ICAI. Mr. Sanjeev is a digital accountant. His vision and mission in life are to bring technology to the CA profession to empower his fellow professionals to achieve greater success in the profession by leveraging technology. He is doing good. Yes, Naveen. क्या करो? Yes, Saroji, please go ahead. Yeah, I am through with the brief introduction. I welcome all again. Now I would request we have Pallavi Todi ji, our committee member, to kindly welcome Sachin Dedia ji and kindly introduce him in front of our speaker. Good evening, everyone, and warm welcome to Sanjeev ji and Sachin Dedia ji. I just want to give a brief introduction of Sachin Dedia ji. He is an independent cyber crime investigator and a certified ethical hacker from EC Council USA. He is a certified international trainer in the field of cyber security, ethical hacking, cyber crime investigation, and digital forensics. He is also working as an IT security expert for various MNCs, SMEs, government departments, and corporates. He is also assisting various government departments with respect to cyber crime queries. Since 2010, he is successfully conducting various seminars and workshops across various schools, colleges, universities, professional forums, Rotary clubs, etc. And he is also one of the most popular speaker in Mumbai University for the refresher and orientation courses. In 2010, he was privileged to give a seminar in the Governor's Office of Mumbai. He has a vast experience of 9 years in vulnerability assessment and penetration testing, and also ISO 27001 network, web application, etc. He has also conducted numerous audits on various international and national clients and for government departments and corporates. He has also conducted various workshops with prestigious associations like Indo-American Universities, Bombay Chamber of Commerce, Princeton Academy, ICAI, Disturbances come up. Sachin ji has a company based in Mumbai, specialized for solution, is basically one of the 20 consultant companies in India. Sachin ji has successfully जी आवाज आ रही है? Actually, there were some disturbances initially, and I think the system has recorded everything and it was in a fast forward mode right now. Okay. Anyways, have you completed his introduction? Hello. I think she is having a bit of network.
yes. Naveen, I guess he has completed the introduction. So we Yes, can Naveen Yeah. ji. Yeah, thanks a I lot, again Pallavi ji. welcome Sachin ji. Hello. Thanks a lot, Pallavi ji. Thanks a lot, Pallavi ji. I think there is some connectivity issue from your side. Without wasting much time, I would request all the attendees to kindly mute themselves so that we can have a bit, we have a voice clarity in our meeting. And I hand over the proceeding to Sanjeev ji. If you can please start your deliberation, sir. Thank you so much, Naveen. I would like to thank Ramesh Bhaiya, Jhawarji, our President, Views Exchange, Saroj Bhaiya, and all the dignitaries over here for giving me the opportunity. I would also like to thank my co-panelist, Sachin Dedia, who had accepted the invitation in a very small, short notice. The flow of the presentation today will be in such a way that, I'll be just touching upon the broader aspects and the aspect which is more closer to the chartered accountant's concern. And then we are going to take the journey with Sachin Dedia for at least an hour, wherein he's going to drive us on various aspects of security. What are the stuff we need to take care about? What are the possible attacks which are happening? And it's a very engaging session. I think I want to congratulate all the participants over here for joining because of their open-mindedness. Like I would like to thank the study circle as well as the participants because ये जो सोच है, ये जो एक ये अब सोचना शुरू किया कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सचिन भी अपनी डिस्कशन में बताएंगे कि पहले हम सोचते ही नहीं थे, अब ये सोच शुरू हो गई कि आज हमारे लिए सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और हम अपने आप को और हमारे क्लाइंट को कैसे सिक्योर करें. सो आई थिंक दैट्स अ बिग बिगिनिंग थैंक्स टू पैंडेमिक फॉर दिस कि ये माइंडसेट बना और ये अपने इस स्टेज में आए कि अपने इस चीज को सोच पाए. सो लेट्स गो विद द प्रेजेंटेशन. आई हैव अ वेरी स्मॉल प्रेजेंटेशन पर्टेनिंग टू something very interesting which we are going to address. I hope everyone is seeing my screen. Yes, sir, it's visible. Thank you so much. So ये बहुत अच्छा रॉबर्ट मिलर का एक स्टेटमेंट है एंड आई गेस ये समझने के वेरी आयरनिकल एंड sarcastic statement which says there are only two type of companies, those that have been hacked and those that will be. अपने सोचते यार हमारे साथ तो ऐसा नहीं होगा. Like I have seen situation where you know लोग सुबह उठते हैं और उनके पूरे मशीन सब कुछ बंद हो जाते हैं and then they get an email saying this is the ransom money you need to pay. उसके बाद आपका सिस्टम ऑन होगा. So अभी एक नई कैटेगरी आई है which is like those that have been hacked and will be again. So हैक तो होना ही है. अब अपने आप को कितना हम सिक्योर करें, हम किस क्यू में बैठे हैं, किस लेवल में बैठे हैं. जब सचिन से बात होगी तो पता चलेगा वो यहाँ से बैठ के किसी के भी स्टेटमेंट में घुस सकता है, कहीं से भी कोई भी नंबर ले सकता है, पिज्जा ऑर्डर कर सकता है, बर्गर ऑर्डर कर सकता है, सिनेमा टिकट ऑर्डर कर सकता है. सब कुछ पॉसिबल है. हमें लगता है कि हम अपने घर में बैठे हैं एंड वी आर वेरी सिक्योर्ड, बट अब सिक्योरिटी इज जस्ट अ मिथ. मैं सिर्फ 5 स्मॉल एजेंडास डिस्कस करूंगा जो अपने लिए एक लर्निंग रिकॉर्नर होगा. वन इज why is this security so important for we as chartered accountants? ये बहुत समझने की जरूरत है यार. बैंक के लिए समझ में आता है, फाइनेंशियल कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनीज, इनके लिए समझ में आता है. हमारे पास ऐसा क्या है एंड why is this becoming so important for us? डेटा सिक्योरिटी क्या मैं एक वन टाइम अफेयर है कि इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, ये समझना होगा. और साइबर सिक्योरिटी के सबसे मेन मंत्र है, इनके 3 पिलर्स है जिसको अपने को समझना होगा और हमें किस तरह से अपने डेटा को सिक्योर करना है. मैं सिर्फ ब्रॉडर एरिया को टच करूंगा और 2 मेरे बहुत इंपॉर्टेंट एरिया विच इज रोड मैप टू पेपरलेस ऑफिस. क्यों हमें पेपरलेस होना चाहिए, उससे हमारी कितनी सारे सिक्योरिटी कंसर्न्स कम हो जाते हैं और हमें कितनी एक्सेप्टेंस मिलती है और कितनी हमारे लिए इजीनेस हो जाती है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वर्क फ्रॉम होम जो अभी शुरू हुआ है, जो आने वाले समय में रहेगा, उसके लिए हमारे पास क्या डूज एंड डोंट्स है. So again, एक और छोटी सी बात शुरू करता हूं कि when bank robber Willie Sutton has asked why he robbed bank, he is reported to have replied, because there where the money is. ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि आज हमारे पास क्यों अट्रैक्शन आ रहा है. ये हैकर्स का, ये जितने भी सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स है, ये हैकर्स लोग हमें टारगेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज वी आर द प्राइम टारगेट्स, क्योंकि डेटा हमारे पास है, लोगों के बैंक स्टेटमेंट्स हमारे पास है,
लोगों के डिजिटल सिग्नेचर्स हमारे पास है, हमारे पास वो सारे फाइनेंशियल डेटा है जो उनके लिए बहुत मीनिंगफुल है। वो क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हमारे पास है और वो उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट है। तो आज हमको वो बहुत प्राइम टारगेट बना रहे हैं और उनके लिए सबसे खुशी की बात ये है, द बिगेस्ट न्यूज फॉर देम इज दैट वी आर वेरी अनऑर्गेनाइज्ड। हम उस चीज की इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे हैं। हमारे पास पेन ड्राइव में टैली पड़ी हुई है, हमारे पेन ड्राइव सब जगह फैली हुई है, हमारे हार्ड डिस्क सब जगह फैले हुए, तो इतना सब कुछ आसपास है ना कि उनको लगता है यार कुछ मेहनत ही नहीं करनी है, हमें तो बैठे बैठा सब कुछ मिल जा रहा है। वो बोलते हैं ना प्लेट में खाना मिल रहा है। तो ये हम कैसे इसको सेव करें और कैसे इसे बचाएं और किस तरह से इस चीज को कंट्रोल करें, क्योंकि ये जो मुसीबत है ये कब अपने दरवाजे में खड़ी है और कब खटखट करके हमें एकदम हमारी रेपुटेशन को लॉस कर सकती है। पैसे की जो लॉस होगी होगी, हम अचानक से एक दिन ऐसा होगा कि हम बिल्कुल भी स्टैंड स्टिल में आ जाएंगे और उस समय हमें बिटकॉइंस में पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी डेंजरस फॉर अस। सो ये डेटा सिक्योरिटी इसलिए इंपॉर्टेंट और भी हो जाती है क्योंकि एक अपने को पता है कि अपने जो आर्टिकल्स एम्प्लॉयज और वो होते हैं बहुत एट्रिशन रेट बहुत हाई होता है। तो कौन सा अपना तकलीफ, कौन सी अपनी भड़ास, वो बोलेगा अच्छा आपने मेरे साथ ये किया, जब वो काम छोड़ के जाएगा तो उसको आपका सब कुछ पता है, कहाँ आपने डेटा रखा है, कहाँ कौन से सर्वर में रखा है, क्या उसका पासवर्ड है। और हमारे पासवर्ड इतने अच्छे होते हैं ना कि हमें बहुत पसंद है हमारा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम हम रखेंगे संजीव। और ज्यादा खुश हो गए तो संजीव के साथ हम मंथ और ईयर लगा देंगे, 0406 लगा देंगे। और ज्यादा खुश हो गए तो संजीव 123 कर देंगे। तो ये सचिन बताएगा कि ऐसे 10 या 12 पासवर्ड होते हैं जिसमें 70 to 80% पासवर्ड क्रैक हो जाते हैं। तो हम जो सोचते हैं ना वो लोग पहले सोच के बैठे हुए हैं। एक बहुत अच्छा सीरियल भी आपने देखा होगा जिसमें पता चला था कि वो फोन पे, हम कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट का हमारे पास फोन आता है जिसमें किस तरह से फिशिंग हुई है, किस तरह से उन्होंने मोबाइल से नंबर लिया है और किस तरह से उनके क्रेडिट कार्ड से पैसे उठाए। अब जब रिमोट स्टाफ हो गए हैं तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं भैया तू अपना लैपटॉप यूज कर, अपना कंप्यूटर यूज कर, जो तुम्हारे पास है वही यूज कर। वहां पर कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई एंटीवायरस नहीं है, सारे लाइसेंस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो हम एक ऐसी रिस्क पे चल रहे हैं, एक इतनी बड़ी रिस्क पे चल रहे हैं जिसका कोई अनुमान नहीं है। और वो एक बहुत छोटे स्टेप से शुरू हो सकती है। सोच बदलनी होगी, हमारा माइंडसेट को चेंज करना होगा कि नाउ हमें करोड़ों रुपए की ऑफिस नहीं चाहिए, हमें करोड़ों रुपए का चैम्बर नहीं चाहिए। लेकिन आज जो हम अभी कंप्यूटर में बैठे, आज हम लोग 40 लोग अपने अपने घर में या अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं, बट हम लोग एक जगह कनेक्टेड है। अब ये सचिन के लिए बहुत इजी है कि वो इस चैनल से किसी के भी कंप्यूटर में जा सकता है, क्योंकि हम सब जुड़ चुके, एक चैनल में आ चुके, एक चेन में आ चुके। ये आपको समझना होगा कि ये कितना एक लेयर बन गया। इंटरनेट के थ्रू हम किसी के कंप्यूटर में घुस सकते हैं, किसी के सर्वर में घुस सकते हैं, उसकी इंपॉर्टेंट फाइल्स में जा सकते हैं, उसके पासवर्ड फाइल में जा सकते हैं। और हम बहुत खुश है कि हम अपने फाइल का नाम भी पासवर्ड ही रखते हैं। और जब उसको खोलते हैं तो हमें ऐसे खजाना मिलता है कि सारे बैंक की डिटेल्स रहती है उसमें, सारे उसके यूजर आईडी, उसके पासवर्ड, उसके ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी हम वहीं पर ही सेव करते हैं कि भैया इतना पासवर्ड कौन याद रखेगा। और ये सारी चीज बहुत डेंजरस है। अब जैसे ये सब इंफॉर्मेशन अपने को पता है, आज तक हम चल रहे थे इसके ऊपर, बट नाउ व्हाट इज हैपनिंग, ये क्लाइंट्स के इंफॉर्मेशन, उनके डॉक्यूमेंट्स, उनके बैंक डिटेल्स, उनके क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, ये सब कुछ हमारे पास ऐसे ही पड़े हुए हैं, whether it is in a soft copy or in a hard copy, ये ऐसे ही पड़े हुए हैं। एंड ये बहुत आसानी से एक्सेस हो पा रहे हैं। अभी भी मैं डेटा बताता हूँ कि मोर देन 95% ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफिस इज नॉट पेपरलेस। उन्होंने डेटा को अभी तक ऑर्गेनाइज नहीं किया है, अभी भी वो एक ट्रेडिशनल प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, एंड द रिस्क इज गेटिंग मोर एंड मोर हायर एंड हायर। सो ये जो सिक्योरिटी प्रोसेस है, ये एक बहुत अच्छा, मेरे पास कॉल आया था कुछ हफ्ते पहले एक सीए का कि संजीव मेरे को 4 स्टेप बताओ, कितना रुपया लगेगा और क्या करना होगा, मेरे ऑफिस को पूरा सिक्योर करना है। मैंने कहा सर आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दिस, मैं एक ब्रॉडर बात कर सकता हूँ। डिटेलिंग में तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, लाइन के अलग लोग होते हैं, सर्वर के अलग होते हैं, साइबर के अलग होते हैं, नेटवर्क के अलग होते हैं। बट ये वन टाइम अफेयर नहीं है कि हमने एक कुछ ऐसा किया, एक सॉफ्टवेयर लगा दिया या एक सिस्टम लगा दिया और हमारी सिक्योरिटी होगी। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि हमारी रिस्क कहाँ कहाँ पर है। एंड ये सर्विस हम अपने क्लाइंट को भी दे सकते हैं।
व्हाट इज द रिस्क आई एम अटैच्ड विद। कितने सारे सीएस पे प्रैक्टिस करने लग गए, वो सिक्योरिटी के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके ऊपर वो एक प्रोफेशनल सर्विसेज चार्ज करें और असेसिंग द रिस्क, रिस्क असेसमेंट कि कहाँ कहाँ पर वल्नरेबिलिटी है, कहाँ कहाँ पर डेटा थेफ्ट हो सकता है, कहाँ कहाँ पर आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है, कहाँ कहाँ पर हमारा डेटा, ये सब कुछ का असेसमेंट करके एक रिपोर्ट बनती है। एंड देन वी एनालाइज कि भैया किस लेवल की ये रिस्क है, इज इट अ वेरी हाई लेवल रिस्क और वेरी लो लेवल रिस्क, उसकी ग्रेड बनती है। एंड देन वी डिजाइन अ प्लान कि भैया इस रिस्क को हम कैसे एड्रेस करें, इस रिस्क को कैसे, तो डिफरेंट प्रोसेस ऑफ एड्रेसिंग ईच एंड एवरी रिस्क, जिसको हम लोग मिटिगेट बोलते हैं। एंड जब ये मिटिगेट के बाद कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग, वो प्रोसेस भी चलते रहता है, वो चेकलिस्ट बनती है, वो एक रूटीन प्लान बनता है, वो मंथली रिव्यू होता है, मंथली ऑडिट होती है और उसके प्रोसेस में चलते हैं। सो ये कंटिन्यूअस जर्नी है जो हमें चलाना पड़ेगा, ये माइंडसेट को हमें क्रिएट करना पड़ेगा। आज 1.5 से 2 घंटे के अंदर हम लोग बहुत कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, बट ये एंड नहीं है, ये सिर्फ अपने माइंड को खोलने की एक्सरसाइज है कि हम कहाँ बैठे हैं और हमें कौन सा वो 10 स्टेप करना है जिससे कि हम अपने ऑफिस को एक फर्स्ट लेवल तक लेके जा सके, एक लेवल ऊपर लेके जा सके। भैया एक ताला तो हमने लगाया, अब उसके ऊपर हम और 4 ताले लगाएंगे और 10 ताले लगाएंगे, तो उस स्टेप से हम आगे बढ़ेंगे। एंड ये जो हम लोग हमेशा डीसा में पढ़े हुए थे, जो हम लोगों ने एक थ्योरी के हिसाब से पढ़ा था कि ये पूरा सिक्योरिटी 3 पिलर पर खड़ा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, हम सबसे पहले जो एक क्वेश्चन आया था कि संजीव अगर हम ऑनलाइन डेटा रख देंगे तो कोई भी मेरा यूजर डिलीट कर सकता है? नहीं, वो नहीं कर सकता है। आप उसमें उस तरह के कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हो, आप वैसे पासवर्ड डाल सकते हो, आप फाइल को एक्सेस लेवल दे सकते हो कि मेरा कौन सा यूजर फाइल को डिलीट कर पाएगा, एडिट कर पाएगा, फॉरवर्ड कर पाएगा, ईमेल कर पाएगा, डाउनलोड कर पाएगा। आप हर लेवल में एक्सेस क्रिएट कर सकते हो। आप उस डेटा को एक अवेलेबल बनाते हो कि कहीं से भी वो एक्सेस हो सके। जब लॉकडाउन हुआ था, मैक्सिमम सीए ऑफिस बोले कि हम काम नहीं कर पा रहे, हम टैली को कैसे एक्सेस करेंगे, हम अपनी डेटा फाइल को कैसे एक्सेस करेंगे। और आप जब आप बात करो कि सर्वर को ऑनलाइन लेके जाओ, क्लाउड में लेके जाओ, तो हमें सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा चिंता है कि हमारे कोई भी क्लाइंट या हमारे कोई भी एम्प्लॉयज उसके अंदर जाके अगर उसको डिलीट कर देंगे तो हम क्या करेंगे। फ्रेंड्स, वो सबसे सिक्योर्ड है, उसमें कई सारी ऑप्शंस है। मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर आप जी स्वीट का या माइक्रोसॉफ्ट के शेयर पॉइंट का प्लान्स लेते हो तो उसमें कई सारे ऑप्शंस है जहां पर आपका एक भी फाइल डिलीट नहीं होगा, हर फाइल का वर्जन्स बनेंगे। जैसे आज हम लोग एक वर्जन्स बनाते हैं कि दिस इज वर्जन 1.1, 1.2, हम एक टैक्स ऑडिट कर रहे हैं या एक स्क्रूटनी का नोटिस भेज रहे हैं, एंड देन वी से कि नहीं इसको रीड्राफ्ट करते हैं, इसको फिर से वापस चेंज करते हैं, तो हर एक लेवल में वर्जन्स हो सकती है। तो ये CIA जो है ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है जो हमें कंटिन्यूअस करते रहना पड़ेगा। बस और 2 मिनट की बात और है कि हाउ वी कैन कीप आवर डेटा सिक्योर। मेरे हिसाब से बहुत सिंपल भाषा में हमें ये 5 या 6 चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज, हमारे सारे सॉफ्टवेयर लाइसेंस्ड वर्जन होने चाहिए। अब वो जमाना गया कि भैया आपसे हम कंप्यूटर खरीद रहे हैं तो मेरा ये फ्री में लगा दो, ये फ्री में लगा दो, ये फ्री में लगा दो, ये पायरेटेड वर्जन लगा दो। अब आप अपनी ऑफिस में कोई भी पायरेटेड वर्जन नहीं रख सकते। अगर आपने पायरेटेड वर्जन रखा तो यू आर क्रिएटिंग स्कोप फॉर साइबर अटैक्स, यू आर क्रिएटिंग स्कोप फॉर ऑल द मैलवेयर्स, इतने सारे इश्यूज, वायरसेस, सब कुछ आपके साथ जुड़ जाएंगे। तो आपके सॉफ्टवेयर पायरेटेड नहीं होने चाहिए और वो रेगुलरली अपडेट होने चाहिए। मतलब मेक श्योर दैट ऑल योर सॉफ्टवेयर्स आर अपडेटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बैकअप, एक बैकअप आपका एक रूटीन प्रोसेस होना चाहिए। जब तक आप क्लाउड में नहीं जा रहे हो, जब तक अभी भी डेटा आपका इन हाउस सर्वर में है, तो एक बैकअप का आप एक रूटीन पॉलिसीज बनाइए दैट आई नीड टू डू वीकली बैकअप्स, फोर्टनाइटली बैकअप्स और मंथली बैकअप्स, और वो डेटा हमारा मिररिंग हो सके इन द सेंस कि सेम डेटा सिंक्रोनाइज होके जा सके। Now when we call about a data folder, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि we love our name so much कि हमारी फाइल का नाम भी हमारा नाम होता है, हमारे फोल्डर के नाम भी हमारे नाम होते हैं, हमारे लिए बुक 1 बहुत अच्छा नाम होता है। So create a protocol wherein you have one folder, inside a folder you have multiple clients, inside the client you have multiple years, and inside the year you can have services,
and then everyone is saving the file into that folder. वो अलमारी बननी चाहिए, वो प्रॉपर सिस्टम बनना चाहिए कि हर पर्सन आपकी ऑफिस का वो सिस्टम फॉलो करके वहां जाके उसको सेव कर रहा है. इट इज नॉट लाइक अ स्कैटर्ड फाइल एवरीवेयर. जब आपको उस फाइल की जरूरत पड़े, यू आर लुकिंग फॉर इट. एंड देन वंस यू क्रिएट दैट फोल्डर, प्लान अ डेटा बैकअप विच कैन बी ऑटो बैकअप. आप सिस्टम को बता रहे हो कि इस पर्टिकुलर डे के रात के इतने बजे ये बैकअप चालू हो जाए. So then again it's a technical stuff of incremental backup or differential backup. वो एक अलग लेवल होता है. नेटवर्क सिक्योरिटी, एक्सेस लेवल क्रिएट करना, यूजर अवेयरनेस. हमारी टीम में ये पूरी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि भैया आपको एक डिसिप्लिन फॉलो करना है, आपको इस तरह से ये काम करना है, आपके कंप्यूटर सिस्टम में ये सारी चीज होनी चाहिए. एंड जो लास्ट आइटम है, अडॉप्ट द क्लाउड. ये हमारे लिए एक मेंटल ब्लॉक है. कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि भैया जो डेटा मेरे हाथ में है वो मेरा अपना है, अगर वो क्लाउड में गया तो वो मेरा अपना नहीं है. सर हमें तो अपना आईपी एड्रेस तक नहीं मालूम है. ये सब्जेक्ट जरूर सचिन डील करेगा. हम ठीक से अपनी आईपी एड्रेस नहीं जानते, हम क्या उसकी सिक्योरिटी करेंगे. क्लाउड में एटलीस्ट कई लोग बैठे हैं, उनके पास ऑटो बैकअप हो रहा है, वो आपके डेटा डिलीट नहीं हो रहे. वहां पर आप जैसा चाहो सिक्योरिटी और कंट्रोल्स क्रिएट कर सकते हो. स्टार्ट टेकिंग योर एंटायर ऑफिस टू क्लाउड. आपके सारे डेटा क्लाउड में जा सकते हैं, आपके सारे सिस्टम क्लाउड में जा सकते हैं. आप एक्चुअल वर्चुअल हो जाओगे. आप कहीं से बैठ के भी, आप और आपकी टीम और आपके क्लाइंट एक साथ काम कर सकते हैं कहीं से भी बैठ के. एंड यू ऑल आर डिपेंडेंट ऑन क्लाउड. इसका मैंने कई प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, बट ये एक बहुत बड़ा दुनिया है. बट स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइंस कि कैसे हम क्लाउड में जा सके. अब मैं कुछ एडवांटेजेस आपको बताता हूं कि व्हाई वी नीड टू गो पेपरलेस. आज मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, एक एजेंडा अगर आपको अचीव करना है, मुझे आप मैंडेट दे रहे हो, मुझे आप कमिट कर रहे हो कि संजीव आने वाले 3 महीने, 6 महीने या साल भर के अंदर मेरी ऑफिस 100% पेपरलेस हो जाएगी. एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? आप डॉक्यूमेंट एक्सेस कर पा रहे हो, बहुत टाइम बचती है. मेरा पूरा काम यूएस का है एंड वी आर 100% पेपरलेस. मैं लॉकडाउन में घर से बैठ के, मेरी टीम सारी घर में बैठी थी, मेरे सारे क्लाइंट सारी दुनिया में बैठे हुए हैं. हम लोग सब कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हमारा वर्क एटलीस्ट 30 to 40% बढ़ा है, कम नहीं हुआ है. और हम एक दिन भी रुके नहीं है. हम लोग दिन में भी काम किए, रात में भी काम किए. सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो आपको लेना है. ये प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर देता है. ये राइट एजेंडा नहीं है, बट यू कैन क्रिएट लॉट ऑफ वर्कफ्लोज. आप गूगल वर्कफ्लो अगर स्टडी करोगे तो उसके थ्रू आप कई सारे प्रोसेस को सिंप्लीफाई कर सकते हो और सिक्योरिटी बहुत अच्छे से एड्रेस होती है. एंड आपके पास 3 बड़े बड़े गुरु बैठे हुए हैं. वन इज जी स्वीट. इसमें से कई चीज आप यूज कर रहे हो. जैसे आप गूगल ड्राइव यूज करना सीख गए हो, अगर नहीं किए हो तो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट विद. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. अगर आप पेपरलेस होना चाहते हो तो आप एक गूगल ड्राइव में अकाउंट बनाइए और अपने डॉक्यूमेंट फोल्डर को उसमें डालिए. वो ऑटोमेटिकली आपके डेस्कटॉप से सिंक करेगा, आपके सर्वर से सिंक करेगा और सारा डेटा वहां लेके जाएगा. गूगल फॉर्म्स आपका पूरा सर्वे में काम करेगा. गूगल डॉक्स आपका वर्ड की तरह काम करता है. जीमेल आप जानते ही हो. गूगल स्लाइड आपका पावर पॉइंट की तरह काम करेगा. गूगल शीट में आप अपनी टीम के साथ बैठ के, एक साथ बैठ के इनकम टैक्स रिटर्न फाइनल कर सकते हो. आप कुछ टाइप कर रहे हो, सामने वाला किसी कोने बैठ के टाइप कर रहा है, दोनों साथ मिलकर उसको फाइनल कर रहे हो. गूगल कैलेंडर से आप पूरे अपॉइंटमेंट शेड्यूल्स कर सकते हो. सो ये एक रोड मैप है कि कैसे आप एक पेपरलेस ऑफिस में जा सकते हो और कंप्लीटली जी स्वीट को अपना सकते हैं. ये सब कुछ फ्री है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है. थैंक्स टू गूगल इतना बड़ा चीज वो फ्री में देता है, और हम लोग अगर इसको अडॉप्ट कर लिए तो उसके बाद हमारे लिए बहुत सारी चीज आगे बढ़े. दूसरा हमारे पास सबसे बड़ा पावर है, वो है माइक्रोसॉफ्ट का. माइक्रोसॉफ्ट भी ये सब कुछ देता है. वो थोड़ा सा नॉमिनल कॉस्ट देता है. जो भी ऑफिस 365 सब्सक्राइब किया है, अभी तो 1200 रुपया, 1500 रुपया में आप माइक्रोसॉफ्ट का एक वन ड्राइव ले सकते हो, जिसमें आपको 1 टेराबाइट तक जगह मिलती है. उसके साथ आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट लाइसेंस्ड ऑनलाइन वर्जन मिलते हैं. आपको ऑफिस 365 मिल जाती है. आपका ईमेल लैपटॉप से, आईपैड से, मोबाइल से, कंप्यूटर से, सबसे ऑटो कनेक्ट हो जाता है. आप टीम्स में वेबिनार कर सकते हो एट विद 250 पीपल एट अ टाइम. माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में आप वही वेबिनार कंडक्ट कर सकते हो, अपनी टीम से बात कर सकते हो. स्काइप है आपके पास. तो इतनी सारी चीज इसमें पॉसिबल है ऑफिस 365.
ये दूसरा अवतार है। तीसरा अवतार जोहो, ये इंडिया में अभी बहुत पॉपुलर है। जोहो अपना ये सब कुछ देता है, लाइक क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसका वर्ल्ड का नंबर 1 सॉफ्टवेयर है, जिसमें आप जो मैंने एक सेमिनार किया था, हाउ यू कैन अट्रैक्ट क्लाइंट्स, इसका सीआरएम अगर आप यूज करोगे तो वो आपके सोशल मीडिया को कनेक्ट करके, आपके सब कुछ को कनेक्ट करके आपको बताएगा कि कौन कौन लोग आपसे अट्रैक्टेड है और आप उसके साथ कैंपेनिंग कर सकते हो। इसकी जोहो बुक्स एक क्लाउड बुक्स की तरह, जैसे क्विक बुक्स है वैसे इसकी ऑनलाइन बुक्स है, जहां पर आप अपने क्लाइंट का कंप्लीट अकाउंटिंग ऑनलाइन कर सकते हो। एक क्वेश्चन आता है कि संजीव, अगर मैं अपने डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर को इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करता हूं, इज दैट अ क्लाउड अकाउंटिंग? नो, क्लाउड अकाउंटिंग इज रियल टाइम अकाउंटिंग। जब आपका बैंक सिंक हो जाता है, जब आपके पेरोल्स, आपके टीडीएस, आपकी सब कुछ सिंक हो जाती है और लाइव रियल टाइम में आप आपके क्लाइंट सब कुछ उसको एक्सेस कर पाते हैं, वो है ऑनलाइन अकाउंटिंग। और ये फ्यूचर आने वाले समय में होगा। जैसे मैंने कहा, पहला एजेंडा, यू नीड टू बी पेपरलेस। सेकेंड एजेंडा इज दैट you need to get your accounts and your clients online in online books like Zoho, like QuickBooks, like बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, किसी में भी आप जा सकते हो। इसका फ्लो भी है, इसके पास डॉक्यूमेंट भी है, तो ये सब कुछ एक पूरा पैकेज देता है। जरूरत है एक एक चीज को पकड़ना और उसको यूज करना। आपको इतना मजा आएगा, आपको लगेगा ये मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता था, हमारे पास एक चैम्बर होता था, एक रिसेप्शन होती थी, एक टेलीफोन होता था। तो आज का इंफ्रास्ट्रक्चर ये है कि हम ये सब टूल्स को यूज करके अपनी ऑफिस को एक नए लेवल में लेके जाएं, हमारे क्लाइंट्स को नया एक्सपीरियंस दें। कल मैं एक बहुत अच्छी बात बोल रहा था और उसमें सबसे डिस्कशन हो रही थी कि ये जो समय है, ये समय आज नहीं तो कल चला जाएगा। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि यार ये 6 महीना 9 महीने का ये जो कोविड पीरियड है, ये जब खत्म हो जाएगा तो हम वो करेंगे जो हम करते आए हैं। आई एम टेलिंग यू, उनका कोई फ्यूचर नहीं है। अब ये सोचना है कि ये 9 महीने में अपने आप को कैसे तैयार करें कि जब हमारा ये समय कटेगा तो हम एक नई दुनिया में रहेंगे, एक नई सोच में रहेंगे। हमारे क्लाइंट्स भी हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया हम इतने एडवांस हो चुके, आप या तो हमारे लेवल के बन जाओ या हमें छोड़ दो। सो दिस इज गेटिंग सो इंपॉर्टेंट कि आप अपने ऑफिस को कितना ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अपने आप को कितना सिक्योर्ड कर रहे हैं, अपने आप को कितना ऑटोमेटेड कर पा रहे हैं, कितना अच्छा एक्सपीरियंस अपने क्लाइंट को देख पा रहे हैं। दोज आर द कीज विच विल हेल्प यू ग्रो, रिटेन, सर्वाइव एंड अट्रैक्ट फ्यूचर क्लाइंट्स। लास्ट स्लाइड फ्रॉम मी। ये वर्क फ्रॉम होम जो अभी चल गया, इसमें कुछ कुछ बातें का एकदम 100% ध्यान रखना है। डू नॉट यूज अनसिक्योर्ड वाईफाई नेटवर्क्स। इसमें सचिन बहुत कुछ बोलेगा, मुझे पता है। यूज स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन चालू कीजिए हर लेवल में। एंटीवायरस फ्री में कभी मत लीजिए, बिल्कुल कभी। ये एकदम कसम खा लीजिए, मुझे कोई भी एंटीवायरस फ्री में नहीं चाहिए। और रेगुलरली स्कैन कीजिए। जब आप डिवाइस यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको पावर से हटाइए, उसको लॉक कीजिए या शट डाउन कीजिए, उसको खुला मत छोड़िए। बिकॉज व्हेन इट इज ओपन टू इंटरनेट एंड व्हेन नोबडी इज यूजिंग इट, एनीबडी कैन गेट इनसाइड योर कंप्यूटर। अब ये इतना इजी हो गया है। एंड यू नो व्हेन यू आर शेयरिंग ई मीटिंग्स, ये सब छोटी छोटी चीजें। फिशिंग ईमेल्स जो होती है, उसमें भी सचिन काफी कुछ बोलेगा कि कितने तरह से साइबर अटैकर्स आपको लुभाने की कोशिश करेंगे, आपको दिखाएंगे कि भैया ये कितना इजी। आपको इनकम टैक्स की साइट दिखा देंगे, बैंक की साइट दिखा देंगे, और आपको लगेगा कि ये तो मेरा चीज है, लेकिन पीछे में उनका पर्दा लगा हुआ है और वो आपका डेटा, आपका पासवर्ड, आपको एक्सेस लेने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो आपसे इंफॉर्मेशन लेके आपको एक्सप्लॉइट कर सके या आपका डेटा चोरी करके आपके बैंक को एक्सेस कर सके। और जब भी कुछ डाउनलोड करें इंटरनेट से, बहुत सावधानी से, कहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हैं, क्या डाउनलोड कर रहे हैं, वो कितना जरूरी है आपके लिए, वो राइट सोर्स है कि नहीं, सब छोटी छोटी बातें हमें जरूर ध्यान रखना होगा। That's all from my side. I thank you all so much. I'll wait at the end for questions. And yes, Sachin, I hope I have not taken much time because I want to give you the maximum time to speak on this subject. And thank you all so much. Over to Sachin. Sure. Thank you, sir. And sir, no worries, no extra time taken. And thank you, Sanjeev ji, for always being an inspiration to youngsters like us and giving us opportunities. So welcome everybody.
I'm just about to start with my session, and before that, I'll just share my screen. Yeah. So all of you can see my screen, right? Right. Okay. So I'm about to make it as a very practical session. Okay. We'll take the question answers with sir later on together itself. Sir, can you be please louder? Yeah, yeah. So what I'm now going to do is I'm going to show you some practical demos about the cybersecurity parts as to where passwords can be compromised or data can be hacked and everything like that. And at the end, we'll take the question answer sessions. Okay. So you can see my Facebook screen over here. I'm about what I'll do is I'll refresh Facebook. Okay. And I'm about to put in. I'm going to use one of my user IDs. I'm putting in one of my passwords. Okay, I put a username, I put a password. Now I'm just going to show you basically how to see this password, right? So what I'm going to do is I'm going to bring the mouse in the password field. Then I'm going to do right click. आप देखिए बहुत सारे options open हो गए. I'll go to the name of the last option. Last option का नाम दिख रहा है? Inspect element. I'll click on that. Once I click on that, तो यहाँ पे ना एक blue color की एक line खुलेगी देखिए. You can read the line. Input type is equal to password, class is equal to input text, जो भी है. But यहाँ पे एक word दिख रहा होगा, type is equal to password, right? तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो word है ना, word password, उसके ऊपर डबल क्लिक कर रहा हूँ. I'll change it to text. Password को मैंने change कर दिया है text के अंदर. Enter मारता हूँ, and you can see the password over there in clear text. Okay, I'll repeat for all of you. मैं Facebook का पेज रिफ्रेश कर रहा हूँ. I'll use one of my accounts over here. मैं एक यूजर नेम डाल रहा हूँ, मैं एक पासवर्ड डाल रहा हूँ. नाउ आई जस्ट शो यू बेसिकली हाउ टू सी दिस पासवर्ड, राइट? तो ये जो मेरा माउस है, आई ब्रिंग द माउस इन द पासवर्ड फील्ड. फिर मैं राइट क्लिक करूंगा. देन आई गो टू द नेम ऑफ द लास्ट ऑप्शन, इंस्पेक्ट एलिमेंट. आई क्लिक ऑन दैट. Once I click on that, here is a blue line. Input type is equal to password, class is input text. तो ये जो वर्ड है type is equal to password, उसके ऊपर मैं डबल क्लिक करूंगा. I'll change it to word text. Press enter, and you can see the password over there in clear text. Clear? अब ये कब काम आएगा? जब किसी ने remember me, जब आप में से मतलब ये बहुत मतलब काफी लोगों की आदत होती है. बहुत सारे लोग आजकल अपने पर्सनल लैपटॉप और डेस्कटॉप के अंदर है ना पासवर्ड्स को सेव करके रखते हैं. रिमेंबर मी करके एक ऑप्शन आता है, पता है, सेव्ड पासवर्ड्स का. ओके, तो ये ट्रिक तभी काम आएगी. देखिए होगा क्या कि अगर आपके पास ऐसा यूजर आईडी है और उसके सामने अगर एक पासवर्ड रिमेंबर में है तो भी ऐसे ही दिखने वाला है. जैसा नो, राइट? नाउ आई विल जस्ट शो यू वेयर इस ट्रिक का मिसयूज किधर होता है. ठीक है, देखिए, in every 3 months, 6 months or 9 months or 12 months, something will go bad in your laptop. And I'm talking about a hardware problem. मतलब motherboard, RAM, screen, charger, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज आ सकती है हार्डवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तब हम ये लैपटॉप उठा के किसको देते हैं? Can anybody write to me on the chat? Suppose if there is a hardware issue in your hardware issues in your laptop or desktop, where do you give your laptop or desktop for repairs? सर आपका ऑडियो थोड़ा सा लो लेवल पे है, इट्स फ्लक्चुएटिंग बेसिकली. Okay, so just tell me on the chat, everybody, where do you give your laptop for repairs? Service center, yes. Vendor, laptop repairing engineer, या कोई हार्डवेयर वाला बंदा आएगा, ठीक है ना? लोकल वेंडर, यस, परफेक्टली राइट. नाउ अब वो लैपटॉप आपका लेके जाएगा. ही विल टेक योर लैपटॉप फॉर 1 day एंड देन ही विल कम एंड टेल कि सर एक दिन लैपटॉप लेके जाता हूँ, बाद में पूरा साफ करके दे दूंगा. And he actually means what he's going to say. Now,
प्लीज रिमेंबर देयर इज नथिंग रॉन्ग विथ योर हार्ड डिस्क. ओके, आपके हार्ड डिस्क में कुछ नहीं खराब हुआ है. Can you take away your laptop, remove your hard disk, connect your hard disk to his own laptop or desktop and start your Windows? तो किसका Windows शुरू होगा? वो आपका Windows शुरू होगा. अब वो क्या करेगा? Facebook का पेज ऐसे ओपन करेगा. He will not even know a single username and password of yours. So what he will do? वो यूजर के उधर जाके खाली डाउन एरो भी प्रेस करेगा ना, खाली डाउन एरो, तो आपने जितने भी यूजर्स खोले होंगे ना, वो सारे के सारे यूजर्स उधर दिख जाएंगे. He can select one by one all the users और उस यूजर के सामने ऐसे टैब मारेगा and any user which has got a saved password against it, तो वहां पे ऐसा दिख जाएगा डॉट 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 में. क्लियर हो रहा है ना? उसको क्या करना है, बस वही राइट क्लिक करो, इंस्पेक्ट एलिमेंट वाला वो ट्रिक करो एंड ही कैन गेट एक्सेस टू योर पासवर्ड. और इतना याद रखिए, अगर उसको आपका फेसबुक का पासवर्ड पता चल जाता है, कैन ही ट्राई योर फेसबुक पासवर्ड ऑन योर जीमेल आईडी आल्सो और नॉट? मतलब क्या, मुझे आपका फेसबुक का पासवर्ड पता चल गया, अब मुझे आपका जीमेल आईडी का मुझे आपका जीमेल आईडी पता है, तो मैं क्या करूंगा, www.gmail.com पे जाऊंगा, आपका जीमेल आईडी डालूंगा और पासवर्ड में आपका फेसबुक का पासवर्ड डाल के ट्राई करूंगा. एट द मोस्ट क्या होगा कि शायद आपका दोनों का पासवर्ड सेम नहीं होगा, तो क्या फर्क पड़ता है, उसको तो सिर्फ एक एरर आएगा, इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड. लेकिन इमेजिन कीजिए अगर सही निकला तो, अगर दोनों सेम निकले तो. ओके, I hope this was clear, everybody. What do we learn from There this? is some voice error, sir. Yeah. So what do we learn from this basically? One, try not to keep remember me passwords. Okay, मतलब saved passwords को अगर आप ना रख सके तो सबसे best. Second, if possible, when the laptop goes for repairs and it comes back from repairs, okay, and it comes back from repairs, then you need to change majority of your saved passwords. आपने जितने भी passwords को save करके रखा होगा ना, उन सबको change करना पड़ेगा. And third, if possible, social media passwords should be separate from your net banking related passwords. Okay, मतलब क्या, आपका Facebook या Instagram password should be separate from your net banking and from your official email ID passwords. I hope this was clear. Okay. Now I'll just move on to the next point. I would request few participants, if you can just tell me what is your Wi-Fi name in your office. आपके ऑफिस में वाईफाई रहेगा ना, तो मुझे सिर्फ आपके ऑफिस के वाईफाई का नाम बताइए. संजीव सर ने बताया ना वाईफाई की सिक्योरिटी, तो मुझे सिर्फ, जैसे अगर कोई आपके ऑफिस में आता है तो आपके पास जो वाईफाई रहेगा वो आपसे पूछेगा भी, कोई अच्छा क्लाइंट, कि मुझे आपका वाईफाई का पासवर्ड चाहिए. लेकिन मैं आपसे पासवर्ड नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो सिर्फ आपसे आपका वाईफाई का नाम मांग रहा हूँ. आपके ऑफिस में आपने वाईफाई का नाम क्या रखा है? You can revert to me on the chat, please. Don't worry, you can give the Wi-Fi. कोई दिक्कत नहीं है. हाँ. Yes, Bharat has given. Okay, BDS Geo. सचिन सब डर गए हैं. हाँ. PayPal. Okay. 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 चलिए, I got a good idea. Somebody is keeping a shortcut name for their own name. Okay. That is the way it is. Generally ऑफिस का ट्रेंड यही होता है, या तो फिर ऑफिस का पूरा नाम जो रहेगा वो रहेगा, या तो फिर उसका एक शॉर्ट फॉर्म दिया जाएगा basically. So now everybody please look at my screen. I am running one software known as Wireless Key View. You can see this over here, everybody on my screen. Wireless Key View. So once I run this software, मैं पहले आपको चैट में भी लिखा देता हूँ वो सॉफ्टवेयर का नाम. Wireless फ्री सॉफ्टवेयर है ये, वायरलेस की व्यू. मैं जैसे ये सॉफ्टवेयर को रन करूंगा, ओके, ये क्या करेगा,
ये देखिए everybody, look at my screen over here. Okay, wireless key view. What this software basically will do is it will take out all the Wi-Fi's that I must have connected on my network, and it will take out the Wi-Fi name along with their password also. And I'll tell you the website from where you can download it also. Okay, Netsoft करके एक वेबसाइट है जहां से आपको ये टूल भी मिल सकता है. Here it is, wireless key view, and it will ask for a password. Password भी इधर ही दिया हुआ रहेगा, तो you just have to copy it up. जब भी आप रन मारो पासवर्ड डाल देना, ओके करना. ओके, नाउ सी दिस. मैंने जैसे ही रन मारा, ये क्या करेगा पता है? मैंने मेरे अभी तो फिलहाल मैं डेस्कटॉप पे हूँ, वाईफाई के साथ कनेक्टेड हूँ, लेकिन मैंने मेरे डेस्कटॉप के साथ जितने भी वाईफाई पे कनेक्ट किया होगा ना, वो सारे के सारे वाईफाई के नाम और उनके पासवर्ड निकाल के देता है. अगेन आई एम गोइंग टू रिपीट. वायरलेस की व्यू क्या करता है कि आपके लैपटॉप में आपने जितने भी वाईफाई के साथ पहले कनेक्शन किए होंगे ना, उन सारे के सारे वाईफाई के नाम और उनके पासवर्ड निकाल के देगा. क्लियर हो रहा है? इससे सीखने क्या मिला, या इससे मतलब प्रॉब्लम किधर है या डेंजर किधर है? देखिए, अगर आपने आपके ऑफिस का नाम आपके नाम से, मतलब ऑफिस के वाईफाई का नाम ऑफिस का नाम ही रखा है या शॉर्ट फॉर्म रखा है, और कोई क्लाइंट आएगा और वो चेक लेके आया और वो चेक देते वक्त आपको बोलेगा मुझे आपका वाईफाई का पासवर्ड चाहिए, तब तो आप मना नहीं कर पाएंगे. तब हम लोग उसको दे देंगे. और पता चला उसका जब लैपटॉप या मोबाइल रिपेयर में गया और सामने वाले ने भी ये सॉफ्टवेयर रन मारा, तो क्या उसको हमारा वाईफाई यहाँ पे दिखेगा? यस. और क्या उसका पासवर्ड भी दिख जाएगा? यस. नाउ कैन ही सर्च ऑन गूगल and figure it out where is our location? I hope it is clear, everybody. Can you search on Google and figure it out where is the location, physical location, basically, right? Now, once can you find out your physical location? Like, can I find out BDS geo, or like BDS? Can I find out the physical location? Maybe yes, maybe no. But if I can find out the physical location, that means I can come near that place, do not enter the office, but I can stand near outside the office itself, scan for the nearby Wi-Fi. ये देखो आजू बाजू के Wi-Fi स्कैन मारना शुरू करो, तो यहाँ पे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? BDS जियो, पीपैल, या तो फिर सरोज एयरटेल. और फिर अगर BDS जियो यहाँ पे भी दिख रहा था और यहाँ पे भी दिख गया, तो यहाँ पे सिलेक्ट करो, कनेक्ट करो, पासवर्ड पूछा जाएगा, पासवर्ड ये रहा. एंड अगर वो पासवर्ड चल गया बेसिकली, तो आई एम ए पार्ट ऑफ योर वाईफाई नेटवर्क. आप इमेजिन करो, मैं सीए के ऑफिस का वाईफाई का पार्ट बन चुका हूं. और बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, सिर्फ एक बार है ना, एक बार किसी भी सीए के ऑफिस के वाईफाई का पार्ट होना चाहिए, बस. यू शुड गेट एक्सेस टू दैट, क्योंकि उसके बाद तो आपका सर्वर पे भी ड्राइव्स तो शेयर ही रहते हैं. विच मीन्स प्लीज रिमेंबर एवरीबडी, जिसको भी आप वाईफाई का पासवर्ड दोगे उसको आपको शायद सचिन, आपका सर्वर का भी सचिन, आई थिंक योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप. वो स्लो हो जाती है. अगर वो माइक्रोफोन पास में हो ना, तो सबको बहुत एंगेज आएगा. हाँ, okay sir. So that ways your your server is also on a shared drive, and please remember, based on our experience, okay, yes, that will happen once you are a part of it, and that part of it is very easy to happen because your Wi-Fi would have got exposed. I hope it is clear, everybody. Once your Wi-Fi password gets exposed and your Wi-Fi name is in your company name, anybody can figure it out. Now, based on our experience, once we become a part of any CA's office, जैसे संजीव सर ने भी बताया था, आप CA लोग सर्वर में काम इतना सिस्टमैटिक रखते हो कि क्लियरली सर्वर के अंदर दिखता है 3 अलग अलग टाइप के फोल्डर्स, 1819, 1920, 2021. और 1920 के अंदर भी परफेक्ट क्लाइंट वाइज डेटा दिख जाता है. जैसा नो, जीएसटी का डेटा अलग, इनकम टैक्स का डेटा अलग, ड्राफ्ट प्रॉफिट एंड लॉस, नॉट टू बी सीन प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, and actual balance sheets and everything like that. Right, everybody? All this is possible only because our passwords have been compromised. Imagine kitne saal ka hard work, how many years of hard work could be exposed. So my request here is, what kind of Wi-Fi names do we need to keep?
जैसे देखिए मेरा देखिए हैथवे इज लाइक ए लोकल केबल नेटवर्क सिटी स्टार। ओके, तो मेरी एक रिक्वेस्ट क्या है पता है, वाईफाई का नाम हमेशा ऐसे रखना जिससे कोई आपकी आइडेंटिटी या लोकेशन ना ट्रेस कर पाए। आई एम रिपीटिंग, घर पे या ऑफिस में वाईफाई नेम ऐसा होना चाहिए जिससे कोई भी हमारी आइडेंटिटी या लोकेशन ट्रेस नहीं कर सके। ओके, जैसे आप कुछ भी नाम लिख लीजिए, टीपी लिंक लिखिए, वायरस, किलर, ट्रोजन, ऐसा कुछ भलता नाम रखेंगे ना एक बार के लिए तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने कोई शॉर्ट फॉर्म डाल के डाल दिया है या अपना खुद का कंपनी का नाम डाला है तो वो एक्सपोज होके और उसके थ्रू अपना लोकेशन ट्रैक करके कोई आके हमारा वाईफाई एक्सेस करके सर्वर को एक्सेस करके डेटा लेके जा सकता है। I hope this point was clear, everybody. So now I'll move on to the next point. Is something to do. तो क्या ऐसा नाम रखने से हम लोग का लोकेशन ट्रेस नहीं होगा? सर डिफिकल्ट है सर। देखिए अभी मेरे एक एग्जांपल में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अभी आप देख सकते हो सर, BSNL, सिटी स्टार, हैथवे, जियो, MTNL, OnePlus दिख रहा है इधर सर। वैसे अब इतने सारे वाईफाई में से सिर्फ एक ही ऐसा वाईफाई का नाम है सर जिसके थ्रू मेरी लोकेशन और आइडेंटिटी ट्रेस हो सकती है। क्या? स्काईनेट, सिटी स्टार दिख रहा है इधर सर। हाँ हाँ। तो स्काईनेट मतलब स्काईनेट और सिटी स्टार, स्काईनेट इज माय कंपनी नेम और सिटी स्टार इज माय वाईफाई नेम। मतलब ये मैं जहाँ से मैं वाईफाई लेता हूँ। बाकी देखो सचिन सचिन तो कितने हो सकते हैं, नहीं? और स्काईनेट भी काफी हो सकते हैं, बट स्काईनेट और सिटी स्टार ना ये थोड़ा डेंजरस कॉम्बिनेशन हो गया था। लेकिन सर इधर अगर दिख जाए कुमार एंड एसोसिएट्स, यू नो, वैसे तो वो तो बहुत इजी हो जाएगा ना सर फिर ढूंढना कि भाई कुमार एंड एसोसिएट्स कलकत्ता में किधर है। ओके, थ्रू गूगल वी कैन ट्रेस दैट व्हिच इज द लोकेशन। हाँ, जैसे सर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। देखिए अभी इधर मेरे इधर देखिए क्वांटम डील्स। तो अभी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वांटम डील्स किधर है, मेरे ऊपर है कि नीचे, अगर आप मेरे एरिया अगर मेरी बिल्डिंग में आओगे तो, है ना? लेकिन अभी आप राइट, लेकिन सिटी स्टार क्या है? इट इज नॉट ए कंपनी नेम, राइट? ओके। So what I'm saying is, suppose if I kept TP Link, suppose if I kept MTNL, then it is very difficult. Like say आपने घर पे जो वाईफाई रखा है, अगर आपने आपका पहला नाम लास्ट नेम रखा है और नेबर्स को अगर आपके प्रति थोड़ा मस्ती है या आपके प्रति खुन्नस आ गया तो they can target you, no? They know which Wi-Fi to attack, right? Because you have kept your Wi-Fi name as your company, I mean your first name, last name, your family name, your surname, your daughters, your children's name, right? लेकिन अगर सपोज आपने कोई अजीब नाम रखा होगा तो नेबर्स भी दो बार सोचेगा कि भाई कौन से वाईफाई को अटैक करूं ताकि वो अटैक हो। सचिन जी, आप बोलना चाह रहे हो वायरलेस की से मैं कोई भी ऑफिस में जाके उसके वाईफाई का पासवर्ड ले सकता हूँ? कोई भी ऑफिस में मैंने कभी गया ही नहीं, मैं कभी भी तभी भी नहीं सर, ये वायरलेस की व्यू उसी लैपटॉप के ऊपर काम करेगा जहाँ पे पहले आपने किसी ना किसी वाईफाई के साथ कनेक्शन किया होगा तो। राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि राइट एग्जांपल होगा कि डू नॉट शेयर योर वाईफाई पासवर्ड, उसको हॉटस्पॉट दीजिए अपने मोबाइल से रेदर देन चेंजिंग। क्योंकि आज मैं एक ऑफिस के बिल्डिंग में हूँ जिसमें एवरीबडी इज विद जियो। अगर मैं अपना यूनिक नाम नहीं रखूंगा तो मैं ही इसको लोकेट नहीं कर पाऊंगा कि मेरा कौन सा वाईफाई है, अगर मैं जियो रख दूं केवल। आर यू गेटिंग मी? ओके, हाँ तो ठीक है सर, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सी, नॉट गिविंग योर वाईफाई पासवर्ड इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स यू कैन डू। राइट। इनफैक्ट आप अपना हॉटस्पॉट दीजिए मोबाइल का, दैट वुड बी अ बेटर थिंग। मैं भी किसी को नहीं देता हूँ, हॉटस्पॉट ही देता हूँ, मैं जियो देता हूँ तो। हाँ, वो अगर आप दे सकते हो तो बेस्ट है। वी हैव सीन वेयर बिग कंपनीज और मीडियम साइज फर्म्स, मतलब मिड साइज फर्म्स जिनके उधर बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं, तो उन्होंने तो क्या किया सर, जियो का एक पूरा अलग से वही लेके रखा है, क्या बोलते हैं, पैक, वो छोटा सा डोंगल आता है ना, वो वाला छोटा डोंगल आता है, वेर यू कैन अलाउ 10 कनेक्शंस टू बी मेड। बस वो लेके खरीद के रख दिया, अभी कोई भी मांगता है तो वो उसका ही कनेक्शन दे देते हैं उठा के। राइट। कई कंपनियों में गेस्ट का भी एक ऑप्शन रहता है कि गेस्ट को ये वाईफाई पासवर्ड देना है, एंड जो मेन सर्वर वाला रहता है वो अलग रहता है। हाँ, उन लोग दैट कैन आल्सो बी डन। यस, बट सर फॉर दैट यू विल नीड टू हैव सेपरेट नेटवर्क आल्सो। दैट वो फायरवॉल के थ्रू आपको बाद में नेटवर्क भी सेपरेट करवाने पड़ेंगे कि गेस्ट का नेटवर्क सेपरेट और अपना ऑफिस का नेटवर्क सेपरेट, और गेस्ट वाला ऑफिस के नेटवर्क में ना आ पाए करके। ओके, वैसा। मेरा I hope it was clear. This was an easier way to get access to anybody's server basically. और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी चार्टर्ड अकाउंटेंट से, आप एक बार ऑफिस में ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना
कि किसी अननोन कंप्यूटर के ऊपर एक नया लैपटॉप, कोई क्लाइंट अगर आएगा उसके लैपटॉप के ऊपर आपका वाईफाई का पासवर्ड डाल देना, और फिर यहाँ पे देखिए नेटवर्क करके एक ऑप्शन आता है, नेटवर्क, कैन यू सी नेटवर्क? अगर नेटवर्क के ऊपर टिक करेगा, आप टिक करना, वहां पे अगर आपका सर्वर दिखता है तो सर्वर के ऊपर कोई डबल क्लिक करके सीधा ड्राइव शेयरिंग वाले पे नहीं जाना चाहिए. I hope it is clear. Which means if any unknown device gets connected to the Wi-Fi, to your Wi-Fi, you should know कि अपना कितना डेटा दिखता है उसको, अपना ऑफिस का कितना नेटवर्क का डेटा दिखता है उसको. That also one experiment you can do in your office. Okay. Now I'll move on to the next point. अब जो मैं आपको एक सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, सॉफ्टवेयर का नाम है नेटकट, NETCUT, नेटकट. आप देख सकते हो यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ. नेटकट. ओके, ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है. इफ यू वांट टू हैव लिटिल बिट ऑफ फन इन योर होम टुडे, अगर आज आपको आपके घर पे किसी ना किसी के खिलाफ मस्ती करनी होगी या किसी ना किसी के खिलाफ थोड़ा खुन्नस होगा, तो ये सॉफ्टवेयर यूज कर लेना. इसका नाम है नेटकट. आप देखो मैं जैसे सॉफ्टवेयर का नाम है नेटकट. नेटकट. हाँ सर, देखिए मैंने चैट पे लिखा है नेटकट. क्या करता है देखिए, अभी ये मैंने नेटकट रन मारा, ठीक है, तो नेटकट क्या करेगा कि आपके वाईफाई में जितने भी डिवाइस कनेक्टेड होंगे ना, उनका डिटेल निकालेगा. एग्जाम्पल, अभी आप देखोगे कि ये मेरा डिवाइस है एंड्रॉइड, ठीक है, आप देख रहे हो मेरा फोन इधर आपको दिखा हुआ कनेक्टेड दिख रहा है OnePlus वाला, बाद में मेरा डेस्कटॉप, ये मेरा पीसी यहाँ पे, और मेरा राउटर. फिलहाल मैं ही हूँ इस ऑफिस में, तो ये 3 डिवाइस मेरे कनेक्टेड दिख रहे हैं आपको, ठीक है. आज जब आप ये घर पे रन मारोगे ना, तो आपको क्या दिखेगा पता है? आपका मोबाइल, वाइफ का मोबाइल, बच्चे लोग का मोबाइल, आपका लैपटॉप और उनका लैपटॉप और वो सब. और फिर मान के चलो कि आपकी वाइफ का मोबाइल है और बाद में आपको आपके वाइफ के प्रति थोड़ा मस्ती है, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो पूरा कर्सर है ना, इसको पूरा ऐसे नीचे लेके आ जाना, पूरा नीचे तक ऐसे. तो होगा क्या होता है कि पूरे घर पे फर्स्ट क्लास इंटरनेट चलेगा सिवाय वाइफ के मोबाइल के ऊपर. मतलब उनको ऊपर आइकन भी दिखेगा मोबाइल के ऊपर कि वाईफाई कनेक्टेड है, लेकिन ना ही एक व्हाट्सएप का मैसेज आएगा, ना ही एक पेज रिफ्रेश होगा. क्लियर? मतलब entire home Wi-Fi would be working perfectly fine except on the device through which you have just dragged that cursor down. Clear? और बाद में अगर दया आ जाएगी, ओके, तो फिर आप इस कर्सर को वापस ऊपर लेके जाओगे तो इंटरनेट फिर से शुरू हो जाएगा. नेट विल स्टार्ट अगेन फंक्शनिंग प्रॉपर्ली. एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये भी दे देता हूँ कि जो भी एक्सपेरिमेंट है वो खाना खाने के बाद ही ट्राई करना. खाना हो जाए, खाना मिल जाए, खाना हो जाए, उसके बाद ही ये एक्सपेरिमेंट ट्राई करना एट योर होम. ओके, अदरवाइज वी विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल व्हाट हैपेंस नेक्स्ट. बट मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर बताया भी क्यों, बिकॉज सी यू शुड नो इन योर होम कि घर पे कितने डिवाइस कनेक्ट होते हैं आपके वाईफाई के अंदर. ठीक है, मतलब आपको पता है ना कि आपके पास 4 या 5 मोबाइल है, 3 या 4 कंप्यूटर होंगे, या 2 या 3 कंप्यूटर है, ठीक है, 4 मोबाइल, 2 कंप्यूटर और एक राउटर, तो टोटल मिला के डिवाइस कितने होने चाहिए? 7. तो इधर दिखना कितना चाहिए? 7. ठीक है ना? 8, 9, 10 दिखा मतलब क्या? 8, 9, 10 दिखा मतलब क्या? It means कॉल पे एक्सेस कर रहा हमारा. yes. It means somebody knows your Wi-Fi password and is using your Wi-Fi for free. You can run. I have a question in this point. Yes, sir. So how safe is this softwares are actually, because in Google or in these kind of things, we find number of softwares like this, right? Right. But how safe is about Netcut and about the previous one, wireless net? हाँ सर, देखिए नेटकट ना, इट इज नॉट इंस्टॉलिंग, इट इज डायरेक्टली रनिंग ऑन द ब्राउजर बेसिकली, तो दैट इज ऑल्सो इन ए वे ओके. और वायरलेस की व्यू ना, इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द वाईफाई कनेक्शन एनीवेज, बेसिकली वो इट इज रनिंग आइसोलेटेड ऑफ द इंटरनेट, वो स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर है, मतलब एक इंडिविजुअल टाइप का सॉफ्टवेयर है, तो दैट इज ऑल्सो ओके बेसिकली.
So how we मतलब can both the softwares understand are about okay. which software is safe and which software is not? मतलब you are expert of it, then you can understand this much better than us. But हाँ, how can we understood तो about देखिए this? कभी भी कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करोगे ना बेसिकली देन यू शुड ऑलवेज गो फॉर द रिव्यूज ऑफ इट बेसिकली मतलब लाइक से जैसे मैंने अभी आपको बता दिया नेटकट ठीक है तो ठीक है मैं बता रहा हूँ जैसे अभी आपको डाउट आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट यू ऑलवेज लुक अप टू गूगल एंड रिव्यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग because if you cannot understand the technical aspects of that particular software as to how much data it will take out then it is always look for the reviews that how good or bad this software is basically then वैसे sir Okay. yes okay my request here is please periodically keep on running this software in your home as well as in your office ताकि अपने को ना एक आइडिया रहे कि भाई अपने अपने अंदर किसी ने कुछ सॉफ्टवेयर डाला है कि नहीं डाला है करके वैसे मतलब ये कोई एक्स्ट्रा कनेक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी अपने को आइडिया आ जाएगा करके Okay. clear I'll now Yeah. move on to the next point okay now in the last 2-3 months ये जितने भी हैकर्स और क्रिमिनल्स है ना उन्होंने अपना थोड़ा गेम चेंज कर दिया अब इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग ए लैपटॉप इन ज्यादा Sanchit, we cannot hear you. सचिन जी, कहीं सचिन का तो किसी ने नेट कट नहीं कर दिया? We are facing bit network issue. नवीन एक बार सचिन को कॉल करो ना तो मैं कॉल करूं मैं करता हूँ. हाँ I think he got disconnected. okay sir can you hear me now Yes, Sachin ji. yeah okay yes so Sachin now sorry I'll repeat my question again how many of you are not using a mobile wallet or not making payment through any UPI based wallet anybody I think today everybody is using everybody. some mechanism. Yes so now please pay attention this is very very important now because as I said you know everybody is now going to target your phone अभी सब लोग आपका फोन को ही टारगेट कर रहे हैं जो अभी मेरा स्क्रीन दिख रहा है फ्लेक्सिस पे दिस इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्पाई या तो फिर एंड्रॉइड का मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर बोल सकते हो हैकिंग वाला एप्लीकेशन है ठीक है ये एक बार अगर आपके फोन के अंदर किसी ने डाल दिया ना तो पूरी तरह से छुप जाता है दिखता ही नहीं है स्क्रीन के ऊपर डाला हुआ है करके इट विल कीप ऑन रनिंग इन द बैकग्राउंड में रन होते जाएगा ठीक है तो देखते एक बार इंस्टॉल करने के बाद आपका क्या क्या डेटा लेके जा सकता है एंड्रॉइड के ऊपर ओके लेट्स सी डाउन पीपल कैन लिसन टू योर फोन कॉल रिकॉर्डिंग आपकी पूरी की पूरी कॉल की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं एनवायरमेंट रिकॉर्डिंग मतलब फोन की आजू बाजू की बातें सुन सकते हैं बाद में आप देख सकते हो फेसबुक के मैसेजेस हाई केक इंस्टाग्राम लाइन वाइबर व्हाट्सएप मैसेजेस टेलीग्राम टिंडर ईमेल जीमेल भी पढ़ पाएंगे एड्रेस बुक एसएमएस मैसेजेस मतलब क्या पता है ओटीपी ऑफ द बैंक ऑल्सो लोकेशन ट्रैकिंग ब्राउजर एक्टिविटी ब्राउजर बुकमार्क एप्लीकेशन की एक्टिविटी की लॉगर मतलब आप जो भी कीबोर्ड के ऊपर टाइप करोगे इंक्लूडिंग मोबाइल बैंकिंग का पासवर्ड भी फोटोज वीडियोस ऑडियोज वॉलपेपर इमेजेस कैलेंडर सब कवर हो जाएगा कुछ छूटा मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं ये ऐसा स्पाई एप्लीकेशन है जो फोन के बैकग्राउंड में रन होगा दिखने वाला नहीं है आपके स्क्रीन के ऊपर ओके अब आप लोग पूछोगे कि सर इसको यूज कौन करता है हु मस्ट बी यूजिंग सच काइंड ऑफ एप्लीकेशंस मेनी पीपल आपके कलकत्ता में ये बहुत फेमस है ओके सो wife has got it out on husband or husband has got it out on wife and
वाइफ गोज टू द लॉयर और टू ए गुड फ्रेंड एंड देन सेज कि मेरा हस्बैंड बहुत आउट स्टेशन घूमते रहते हैं, मेरे को बोलते जा रहे इधर और निकलते किधर और से, मुझे पता करना है चल क्या रहा है उनकी लाइफ में। तो उनके जो वेल विशर है वो बोलते हैं कि भाई जिस दिन आपका एनिवर्सरी आएगा या हस्बैंड का बर्थडे आएगा उनको फोन गिफ्ट में दे देना, फोन गिफ्ट करो, उससे पहले ये एप्लीकेशन डाल के दे देंगे जो छुपा हुआ रहेगा, बाद में हस्बैंड जैसे यूज करेगा आपको ये सारी डिटेल मिल जाएगी। हमने देखा है पार्टनर्स ने दूसरे पार्टनर्स के अंदर डाल के देखा है, मतलब पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स के अंदर डाल रहे हैं, डायरेक्टर्स दूसरे डायरेक्टर्स के अंदर डाल रहे हैं, बॉसेस आर ट्राइंग टू पुट इन द एम्प्लॉइज फोन्स, पेरेंट्स आर पुटिंग इन देयर चिल्ड्रंस फोन्स। वी हैव आल्सो सीन बेटी की शादी है और बेटी की शादी अरेंज मैरिज है, तो अरेंज मैरिज के टाइम पे भी लड़की के पेरेंट्स आजकल क्या कर रहे हैं पता है, सामने वाले लड़के को एंगेजमेंट के टाइम पे या शादी का जो गिफ्ट दिया जाता है आज की तारीख में, वो आजकल फोन गिफ्ट करने लग गए। ओके, तो आप समझ सकते हो लड़की के पेरेंट्स अगर फोन गिफ्ट करेंगे तो फोन गिफ्ट करने से पहले ऐसे एप्लीकेशन डाल के दे देंगे जो छुपा हुआ रहेगा, बाद में लड़का जैसे यूज करेगा ना तो फिर खानदान में कोई इंक्वायरी करने की जरूरत पड़ने वाली नहीं है। क्लियर? नाउ देयर आर 3 तो ways। रिमूव कैसे करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आता है फिर। हाँ सर, मैं पहले बता देता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करते लोग। 3 ways। पहला, किसी ने आपको फोन गिफ्ट किया। दूसरा, कि आपका फोन किसी के हाथ में गया फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मिनट्स, 3 मिनट अगर आपका फोन किसी के अंदर हाथ में आ गया ना तो वो ऑटोमेटिकली मतलब वो इंस्टॉल कर सकता है और वो छुपा भी सकता है करके। थर्ड, अगर आपको कोई एसएमएस आएगा या व्हाट्सएप के ऊपर कोई लिंक आएगी, एसएमएस और व्हाट्सएप के ऊपर कोई लिंक होगी, अगर आपने लिंक के ऊपर टिक कर दिया और अगर उसके बाद आपने ध्यान नहीं दिया और आपको लगता है कि अरे ये तो नेटफ्लिक्स डाउनलोड हो रहा है या 3 महीने का मेरे को फ्री ट्रायल मिल जाएगा या तो फिर वो आरोग्य सेतु ऐप कुछ ऐसा डाउनलोड कर रहा है और आपने वो गफलत में वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया, तो फिर भी आपके फोन के अंदर ऐसा स्पाई एप्लीकेशन इंस्टॉल हो सकता है। क्लियर? I'll just show, we have a case study also in this. Okay, everybody, I would just request if you can just read the heading over here. Okay, I'll just bring it down. I would request, please quickly read this. So, man lost 1.5 lakh rupees. उसको क्या लगा, उसको भी एक लिंक आई, उसको लगा इनकम टैक्स का रिफंड है, ठीक है, उसके लिंक के ऊपर टिक कर दिया, एप्लीकेशन डाउनलोड हो गया, उनको डाउट भी आया, उन्होंने रिमूव भी किया, बट अनफॉर्चुनेटली तब तक एप्लीकेशन बैकग्राउंड में छुप चुका था और विद इन नेक्स्ट डे, मतलब विद द नेक्स्ट डे इटसेल्फ उसके मोबाइल में से 1.5 लाख रुपीस, उसकी मोबाइल बैंकिंग में से 1.5 लाख रुपीस विड्रॉ हो चुके थे। ओटीपी भी आ रहा था, उसको ओटीपी आ रहा था, बट ओटीपी तो उसी फोन पे आ रहा था ना जो ऑलरेडी हैक था। क्लियर? नाउ कम्स ऑफ कोर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ डू वी डिटेक्ट? फर्स्ट, पहले प्रिवेंशन, हो सके तो अपना फोन की सिक्योरिटी बढ़ा दीजिएगा, एंड वन ऑफ द वेज टू डिटेक्ट इज व्हाट, please try to have a good antivirus inside your phone. Okay, a good antivirus in the sense, if you're using a phone lot for your banking purpose, for your business purpose, okay, then you need to have a good antivirus. A good antivirus could be in the form of Wikil,
क्विकिल का मोबाइल का भी एक एंटीवायरस आता है. So you can say you can go for Quickkill mobile antivirus, or you can try Lookout. आप कोई भी एक अच्छा एंटीवायरस के थ्रू आपके फोन को पीरियडिकली थोड़ा स्कैन मारते जाइएगा, और फिर अगर आपको एंटीवायरस पे भी इतना भरोसा नहीं है तो एक बार स्कैन मार दीजिए, फिर निकाल देना उसको भी. बट आपका ये एंटीवायरस स्कैन मार के एंटीवायरस खुद ही बताएगा कि मतलब एंटीवायरस विल स्कैन द फोन एंड विल टेल यू कि ओके एज पर हिम दिस इज अ स्पाई एप्लीकेशन. और जब वो एप्लीकेशन का नाम दिखाएगा और आपको पता है कि आपने तो कभी ये एप्लीकेशन देखा ही नहीं है या यूज ही नहीं किया है इसको और दिख रहा भी नहीं है, फिर एंटीवायरस ही बोलेगा शैल आई कीप इट और शैल आई रिमूव इट, इग्नोर करूं कि रिमूव करूं. देन माय रिक्वेस्ट इज प्लीज गो अहेड एंड रिमूव सच applications itself. Okay, so as I said, you can run any good antivirus and scan your phone, so that will help you to detect whether your phone is having any kind of a spy application or not. Can this type of application also hit the bank applications we have on our mobile or UPI kind of a thing? मतलब आप ऐसे बोल रहे हो कि सर कैन दिस स्पाई एप्लीकेशन टेक अवे योर पासवर्ड्स ऑफ यूपीआई बेस्ड वॉलेट्स, ऐसे? Not perfectly this, but actually there are applications of UPI, ICICI Bank, Axis Bank, certain this kind of applications always use, right, on mobile applications. Right. So if these kind of spy applications can access or can give the data of those things, yes. what are the हाँ, अगर आप बोल रहे हो yes, मोबाइल बैंकिंग या यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशंस का उन लोगों को डेटा मिलेगा, यस मिलता है सर. इसके लिए तो ये फ्रॉड होना सर, देखो ना ये 1.5 लाख रुपीस तो उसके मोबाइल में से ही गए ना बाद में. वैसे so then why these banks are claiming that their applications are safe? Because if these kind of softwares are also available, yes. and it is always very risky to have mobile applications on our mobile. See, please remember, banking applications are safe. Okay, it is your mobile which is not secured. And please remember, such kind of spy applications are attacking your phone, not a single application as such. तो फोन की जो सिक्योरिटी है ना, वो बैंक थोड़ी जवाबदारी लेगा कि आपकी फोन की सिक्योरिटी मैं करूं. नहीं, उसकी सिक्योरिटी की जवाबदारी हमारी है. बैंक अपना एप्लीकेशन सिक्योर करेगा कि भाई मेरे एप्लीकेशन के अंदर घुस के कोई आपका डेटा नहीं लेके जा सकता करके. मैन इन द मिडल अटैक, आपके फोन से डेटा गया, मेरे सर्वर तक पहुंचा, उस बीच से कोई बीच का डेटा उठा के नहीं लेके जाएगा करके. दैट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज हिज सिक्योरिटी दैट ही नीड्स टू कीप. बट अगर आप बोलोगे कि मैं मेरा फोन बांटते रहता हूँ, मेरा फोन सब लोग यूज करते हैं, मेरा फोन थोड़ा पीसीओ टाइप है, सब लोग यूज करते रहते हैं, और फिर आप बोलोगे कि मैं लूटा, मैं बर्बाद हो गया, तो बैंक उसकी जवाबदारी नहीं लेगा. सो ये मॉडस ऑपरेंडी क्या हो रही है ये सब स्पाई एप्लीकेशंस की, कि दे आर टारगेटिंग द फोन. अब क्या हो रहा है कि जब पूरा फोन ही हाथ में आ जाता है, आप देखो ना इतने सारे फीचर्स में फोन ही हाथ में आ जाता है, इंक्लूडिंग एसएमएस मैसेजेस, तो ओटीपी भी पढ़ने को हो जाते हैं उनको वैसे. And that is the reason they are successfully able to do this kind of fraud basically, sir. Sir, can these links be sent via emails, like जो promotional emails आते हैं बहुत सारे, कोई भी एक वेबसाइट सर्च करने के बाद ये जो प्रमोशनल ईमेल्स आते हैं इसमें अनसब्सक्राइब वाला ये सब ऑप्शंस रहता है, तो इन सब पे भी अगर हम लोग अनसब्सक्राइब वगैरह पे क्लिक करते हैं तो ये सब लिंक के थ्रू ये डाउनलोड हो सकता है? देखिए मैम, आप जैसे अनसब्सक्राइब के ऊपर टिक करोगे ना, मैं खाली एग्जांपल दे रहा हूँ, ओके, इट शुड रीडायरेक्ट यू टू ए पेज जहाँ पे आपको अनसब्सक्राइब को पता है रीजंस पूछते हैं बेसिकली. तो अगर आप मोबाइल के ऊपर बैठ के मैम आप अनसब्सक्राइब कर रहे हो ना, तो जब तक पेज खुल रहा है तब तक यू आर ऑल सेफ. बट अगर पता है एकदम ऊपर नोटिफिकेशन बार में अगर आपको सडनली कुछ डाउनलोड होते हुए दिख गया ना मैम, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, डाउनलोड कुछ नहीं होते हुए दिखना चाहिए. वैसे अगर कोई डाउनलोड होते हुए दिख गया मतलब वो डेंजर है. और डाउनलोड चलो एक बार हो गया ना, तभी भी आप सेफ हो, बस उसको इंस्टॉल मत कर बैठना ये सोच के कि इसको इंस्टॉल करेंगे तो फिर हम लोग अनसब्सक्राइब कर सकते हैं करके, नहीं, तो फिर आप रुक जाना है सर. तो सर ये तो कंप्यूटर्स के लिए भी एप्लीकेबल हुआ ना? नहीं, कंप्यूटर्स में जो डेटा रहता है. हाँ एग्जैक्टली, बट लोग जैसे मैं बता रहा हूँ मैम, क्रिमिनल्स है ना वो ज्यादा करके अभी फोन को क्यों टारगेट कर रहे हैं पता है? क्योंकि कंप्यूटर का डेटा अगर ले भी लूंगा, लेकिन ओटीपी तो फिर भी आपके मोबाइल पे ही आ रहा है ना आज. नहीं राइट, बट मतलब अगर मेरा मतलब कुछ इम्पोर्टेंट डेटाज कंप्यूटर्स में है जो, तो ये सॉफ्टवेयर ये कंप्यूटर्स में भी वर्केबल है इसी कंडीशन में? हाँ मतलब कंप्यूटर के लिए थोड़ा दूसरा वर्जन है, बट ऐसे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है वैसे. सचिन जी, इसका एसओएस क्या हो सकता है? अगर सपोज डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल भी हो गया,
तो अगर मैं इमीडिएटली Right. मोबाइल कनेक्शन बंद कर दूं मोबाइल का, तो ये एसओएस इफेक्ट हो सकता है एक तो, कि मैं सामने देखिए- वाले को एक्सेस नहीं मिले, क्योंकि वो थ्रू इंटरनेट ही मेरे को एक्सेस कर पाएगा. हाँ बट सर कितनी देर तक आप इंटरनेट बंद रखोगे? नहीं, फॉर द टाइम बीइंग टू हाँ, yes, बिफोर yes, टेकिंग एनी, मतलब by कोई, simple अब request. जैसे मुझे पता चला कि इमीडिएटली कोई मेरा ओटीपी आया, मैंने तो जनरेट ही नहीं किया, तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि तुरंत मैं मोबाइल डेटा को ऑफ कर दूं, सो सर, दैट मैं नेक्स्ट आपको जनरेट नहीं हो. इससे भी बेस्ट ऑप्शन बताऊं क्या होगा पता है सर? हम्म, सिम निकालिए और दूसरे फोन के अंदर डाल देना. अच्छा. ठीक है, आपका देखो फोन हैक हुआ है. आई होप ये क्लियर है, बराबर है? सर वापस बोलिए एक बार, यू आर नॉट ऑडिबल. सिम निकालिए और दूसरे फोन के अंदर डाल दीजिए. ओके. क्लियर हो गया? उससे क्या होगा? आपका तो फोन हैक हुआ है. जो सिम जो है वो दूसरे फोन के अंदर डाल देंगे और उधर अगर ओटीपी आ रहा होगा तो वो ऐसे भी दूसरे फोन का ओटीपी इधर तो शेयर ही नहीं हो पाएगा. राइट, राइट. वैसे है. तो ऐसे बोलते हैं ना लोग, बहुत सारे टाइम पे पूछते हैं कि सचिन थोड़ा डाउट आ गया, मैं अवेलेबल नहीं हूँ या हमको कुछ करना है, तो मैं सबको एक ही सलाह देता हूँ, घर पे एक सेकेंड हैंड स्मार्टफोन बैकअप में होना चाहिए. अपने पास अगर 4-5 लोगों की फैमिली है, सबके पास एक एक फोन है, एक बैकअप स्मार्टफोन होना चाहिए. बेचने का नहीं, कोई भी एक वाला फोन. वैसे कभी भी जरूरत पड़ सकता है. अगर अपने को लगता है कि अपना फोन में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, इमीडिएटली रिमूव द सिम, पुट इट इन अनदर फोन एंड यूज दैट फॉर 1 or 2 days. कोई भी अननोन एसएमएस आया मतलब समझ जाने का, ओटीपी वाला, कि बॉस अपने ओरिजिनल फोन में गड़बड़ हो चुका है. वैसे बट इंटरनेट ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर. हाँ, इंटरनेट तो सर होगा ही. हम्म. वैसे यस. Okay, Sanjeev sir, I think we can go for the question answers. if you have any further बस thing, एक ही पॉइंट बाकी है सर मेन, बट आई एक थिंक दो पॉइंट और मोबाइल सिक्योरिटी पे सचिन, इफ यू कैन एड्रेस जो फिशिंग होती है ना मोबाइल पे, हाँ एक दो Yes. केस स्टडी बता सको तो आई थिंक दैट इज वेरी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. राइट. सर देखिए एवरीबॉडी, व्हाट सर इज आस्किंग मी टू शो यू इज दिस थिंग, अभी जो रिसेंटली जो कोविड के रिलेटेड जो फिशिंग स्कैम्स बढ़ चुके हैं ना, बेसिकली वो मैं आपको एक छोटा सा एक ये बताना चाहता हूँ. सर ये देखिए, आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं ना, ये सब कोरोना वायरस के रिलेटेड फेक वेबसाइट्स बनाई गई है. You just look at the name of the website, you will find something very very unique in this. Can you see? Having Acha. the keyword coronavirus over there. हाँ. And see, next thing I'll show you. आप देखो अभी WHO के साइड से मेल भेजे जा रहे हैं. You will receive a mail from WHO telling you about the safety measures with respect to COVID-19. अब आप सोचो, WHO itself is sending you a mail. इससे अच्छा और क्या हो सकता है? नहीं, WHO sending mails about safety measures with respect to coronavirus. लेकिन आपको क्या लगता है उनके पास इतना टाइम है, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के भाई, by time they will take all this particular thing and send you these mails? This is a phishing attack which I'm just telling you about. अगर आपने वो सेफ्टी मेजर्स डाउनलोड कर लिए ना, तो फिर समझ लीजिए कि जिस डिवाइस के ऊपर वो फाइल डाउनलोड हो गई ना, वो डिवाइस गया. Next, if I were to tell you, I'll just show you another example. See this. CDC fake alerts, Center for Disease and Control, Prevention and Control वाला. वहां पे भी देखो, आपको दिखाया जाएगा. If you click on the link ना, you will see the updated list of the COVID-19 patients near you. अगर आप उस लिंक के ऊपर टिक करोगे तो आपको आपके एरिया के कोविड-19 के पेशेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा सकती है. क्यूरियोसिटी. और जैसे आप लिंक के ऊपर टिक करोगे, उधर बोला जाएगा लॉगिन वाया जीमेल या लॉगिन वाया फेसबुक. और अगर आपने उधर ऐसे लॉगिन वाया जीमेल कर दिया, तो आपको है ना कोई भी इंडिया के बाहर का कोविड-19 का मैप दिखा देंगे और आपको लगेगा अरे ये तो कुछ गलत हो गया करके.
लेकिन तब तक आपका जीमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। नेक्स्ट, हेल्थ एडवाइजरी फेक मेल्स, मतलब कोई भी सेफ्टी टिप्स, सेफ्टी मेजर्स, मेरी तो एक सिंपल रिक्वेस्ट है, कोविड के रिलेटेड अगर आपको कोई भी मेल आएगा ना, 90% समझ लेना कि वो फ्रॉड ही होगा, 90%। स्पेशली अगर वो कोई पीडीएफ फॉर्म में आ रहा होगा या उसके अंदर कोई लिंक रहेगी, then I would suggest that 90% of the time it would be nothing but what? A fake mail itself. See, these are the workplace related mails. These are the kind of fake mails which have been doing the round in the last few months itself. If you want, I'll share the PPTs, this PPT also, basically. Yes, please. These are the normal safety tips. The Zoom advisory, basically. This is a Zoom advisory given out by Ministry of Home Affairs only. In case if your children are using Zoom for education purposes, then ये सब safety measures follow होने चाहिए करके, basically. Sachin, one of a close friend of mine is a chartered accountant. उसके case study, I want you to share, how we can protect this. उसके पास एक close friend से message आता है कि urgent need of money, उसके WhatsApp में आता है और उसको एक link या एक बताया जाता है कि आप मेरे को पैसा transfer करो. Right. And actual में उसने गलती ये की कि he has never called that friend. उसने actual Right. transfer करके वो उनका pin लेके वो सारा चीज हुआ. How should, what's the precaution for that? Just to call or is there any other way? Was to call, sir. Basically because sir ये हम लोग बोलते हैं chain mail है sir. Chain mail in the sense, sir, like suppose sir, Sanjeev sir, unfortunately suppose if a Facebook account gets compromised, you will have thousands of good friends, right sir? Now what these people do na, once they get access to your account, they send messages from your account to your friends only saying that you are in need of money, right? And then once they begin to get the money, then they will send to other friends that okay मेरे को OTP दे दो, and that will be their passwords, Facebook passwords, OTP only, basically. So in such cases, my request to all of you chartered accountants is, no matter how good friend, no matter how good client is asking for a money online, best thing, please remember, call up that particular person and straight away ask him, does he really require that money, or his account has been compromised or not, basically. सचिन जी, ये पीडीएफ से कैसे मैलवेयर डाउनलोड हो रहा है? जैसे आपने बोला कि कोविड से पीडीएफ आ रहे हैं जो मैसेजेस. So PDF is a very big carrier of viruses and malwares. In fact, PDF is a good carrier, sir, because PDF में सर आपको कीलॉगर्स, malwares, ट्रोजन सब बाइंड करके आ जाएंगे. क्योंकि अपने लिए क्या होता है सर, डाउनलोड होता है पीडीएफ और हम लोग जैसे डबल क्लिक करके रन होते हैं ना, पीछे जाके वो वायरस इंस्टॉल होता है, अपने लिए सामने खुलता है वो पीडीएफ. ओके. वैसा. But it is So generally how do we get to know about it कि PDF के अंदर कोई malware attached है कि नहीं? सर इस टाइम पे लिए पता है, जैसे संजीव सर ने बताया था ना सर, अपने पास एक पेड एंटीवायरस होना चाहिए. नाउ हियर इज द रोल ऑफ द एंटीवायरस सर, बिकॉज सर व्हेन आई रन ए पीडीएफ और व्हेन आई डाउनलोड ए पीडीएफ, इट इज अ गुड एंटीवायरस. फर्स्ट ऑफ ऑल शुड स्कैन द पीडीएफ, ओके, और स्कैनिंग में अगर डिटेक्शन नहीं होता है तो एटलीस्ट जब मैं डबल क्लिक करके रन करता हूँ ना, तभी तो मेरा वायरस डिटेक्ट होना चाहिए. ऐसे. The same is with the mobile as well, because we sometimes access emails through mobile as well. मोबाइल में ना सर फिर भी प्रॉब्लम किधर है पता है, मोबाइल में ना ऑटो इंस्टॉलेशन अभी भी नहीं पॉसिबल है. एंड्रॉइड में जैसे अगर आप कोई एपीके डाउनलोड भी हो जाएगा ना सर, जब तक आप उसको परमिशन दोगे नहीं ना, उसको इंस्टॉल करते वक्त नेक्स्ट 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 परमिशन नहीं दोगे ना, तब तक कुछ स्पाई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल नहीं होगा और कुछ मैलवेयर भी इंस्टॉल नहीं होगा. विंडोज में दिक्कत क्या है पता है सर, ऑटो इंस्टॉलेशन है, EXE ऑटो एग्जीक्यूट हो जाती है ना, तो हम जब पीडीएफ डबल क्लिक करते हैं ना तो पीछे जाके वायरस ऑटो एग्जीक्यूट हो जाता है. बस वही एक दिक्कत है विंडोज में. ओके. वैसा है. तो ऐसे बोलते हैं सर कि इट इज इजियर टू हैक ए विंडोज रेदर देन एन एंड्रॉइड फोन. ओके. वैसा. So I just have a query with respect to Windows only. That right now what we say that to use a genuine Windows, wherever you're using any version, maybe Windows 10 or Windows 8, we have a user authentication control. Whenever we install any exe application or run any exe application, it will ask you for a permission for the user to whether to execute that or not. And second, whether the Windows Defender, the antivirus which Windows itself has, whether it is a good antivirus to be used than a Quick Hill or some else paid software, antivirus software, sir.
देखो, if you have Windows 10 ना and it is paid, genuine है, then you do not need any antivirus also, because Windows Defender is good enough. Basically, we just need to update and upgrade it. That's it. Then Windows Defender is good enough, sir. Basically, and then to have that user level authentication, where the user does not himself has any rights to install any application, na, that is a good prevention against all these keyloggers and PDF malicious softwares from getting installed, sir. Basically, if the user does not have admin rights, it's always better. सचिन जी, हमारे पास कोई ऑप्शन है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उबुंटू में इंस्टॉल कर सकें? सर Ubuntu में एक वाइन करके एक सॉफ्टवेयर आता है, वाइन करके एक पैकेज आता है. यूजिंग वाइन यू कैन इंस्टॉल ऑफिस, बट अगेन ऑनेस्टली स्पीकिंग सर, उसकी कंपैटिबिलिटी बनी ही नहीं है, क्योंकि Ubuntu में तो उन लोगों लिबर ऑफिस और ओपन ऑफिस और उसके लिए रखा है, किंगसॉफ्ट ऑफिस के लिए कंपैटिबिलिटी रखी है सर, माइक्रोसॉफ्ट के लिए नहीं रखी है सर अभी भी. और अगर मैं उबुंटू से अमेज़न के कोई भी क्लाउड सर्वर में, विंडोज बेस्ड सर्वर में लॉगिन कर सकता हूं? क्योंकि नॉर्मली विंडोज से तो आरडीपी में करता हूं. यस कर सकते हो सर आप. यस, वो तो कर पाओगे सर, वो AWS अभी ऑप्शन देता है सर. दिल्ली में है क्या? अच्छा, दिल्ली में है? हाँ. दिल्ली नहीं, दिल्ली में तो एडमिट कैश लिए थे. बहुत साल पहले मैं इनको डेल्टू के बाद कोई चीज काम से गई होंगी तो मैं देखी. Sachin ji, since all our participants are from a chartered accountant background, if you guys just can highlight a few things which, as a safety measures, we should have in our desktop or laptop, as we discussed that we should not have admin rights over there. Further, we are also using this TeamViewer and AMI Admin AnyDesk to have controls on our client's desktop. So whether we should have these softwares running or not, and how do we protect our clients' data? Basically, suppose if we have our clients' data with us, so any mechanism through which we can protect it? हाँ सर, देखो उसमें ना, मैं आई थिंक आई वुड ऑलवेज से दैट यू स्टार्ट विथ व्हाट संजय सर्स लास्ट फ्यू स्लाइड्स वेयर यू नो वेर ही सेड ना कि ये होना चाहिए, मतलब बेसिकली ऑल दैट वुड बी अ स्टार्टिंग पॉइंट सर, बेसिकली. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट दिस रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर्स ना, वी ऑलवेज से फर्स्ट इज TeamViewer, ओके, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से. सेकंड इज AnyDesk, एंड लास्ट में वी नेवर रिकमेंड AMI Admin, बिकॉज AMI Admin के थ्रू बहुत सारे रैंसमवेयर आए बेसिकली. इसके लिए हम लोग अभी भी TeamViewer और AnyDesk पे ही रेकमेंड कर रहे हैं सर. एंड सर, माय रिक्वेस्ट हियर इज टू ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, नाउअडेज देयर इज दिस, whenever you are going to go to cloud, okay, you think about the convenience that you will be able to operate your office from anywhere in the world, but then you, along with that convenience, will also come certain responsibility, because I always want the chartered accountants to think that they are not putting their data, they are putting their clients data on the cloud. ओके, तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी जो ओनरशिप है, उसकी जो जवाबदारी होगी ना, वो हमारी है करके. ऐसे जैसे संजीव सर ने बोला ना, नाउ इज द टाइम टू थिंक अबाउट सिक्योरिटी. सो द मोमेंट आई से, मोमेंट द CA थिंक्स क्लाउड, आई वुड ऑलवेज से बाजू में एक वर्ड ऐड करो, सिक्योरिटी. क्लाउड पे गए, मेरे को सिक्योरिटी देखनी पड़ेगी, बिकॉज our funda is simple. If you can access your office from anywhere in the world, then anyone in the world can also get the same access, provided your details are secured enough, then it's good. So sir, if you are going to move on to cloud, then worry about सिक्योरिटी. जैसे सर 2 स्टेप ऑन कर लीजिए, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दीजिए. VPN में आप जो कनेक्शन कर रहे हो, वहां पे भी आप ड्यूअल नेटवर्क कनेक्शन डाल दीजिए, और 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर दिया. तो दीज आर स्मॉल थिंग्स, एंड वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई वुड ऑलवेज से इज दैट प्लीज हैव ए गुड बैकअप. सी, कोई ना कोई रैंसमवेयर, कोई ना कोई वायरस, किधर ना किधर, जैसे सर ने बताया था, समवेयर डाउन द लाइन यू आर गोइंग टू गेट हैक्ड. बस आपका नसीब कौन सा है, उस दिन पे आप वो गए, मुहूर्त आएगा आपका, उस दिन पे आपका वो गया, वैसे, राइट. क्लाउड पे कैसे रैंसमवेयर आता है सर? रैंसमवेयर सर देखो, क्लाउड में भी सर 3-4 पार्ट होते हैं ना, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस. अब आपने क्या लिया है, तो क्लाउड क्या बोलता है, भाई आपने घर लिया है तो उसका ताला भी अभी आप ही लोगे. ओके, अगर आप बोलोगे कि नहीं मेरे को पूरा वेल फर्निश चाहिए और वॉचमैन भी तू ही संभाल,
देन जवाबदारी क्लाउड की हो जाती है as to what kind of a service you have taken from the cloud. क्लाउड तो आपको सब लाके देता है सर. क्लाउड बोलते हैं तुमको पूरा बिल्डिंग खाली चाहिए तो मैं पूरा बिल्डिंग खाली करके दूंगा. तुमको खाली बिल्डिंग पे एक फ्लोर चाहिए तो फ्लोर दूंगा. फ्लोर के बदले खाली एक ऑफिस चाहिए, ऑफिस सेटअप करके चाहिए, ऑफिस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर करके चाहिए. तुमको आके खाली बैठ के खाली लैपटॉप भी नहीं चाहिए उतना भी वो लाके बोले टैली नहीं चाहिए तो चलो टैली भी मैं लाके दूंगा, बस हाथ पैर तुम लेके आना. उतना तक क्लाउड सिक्योरिटी है, उतना तक क्लाउड आपको देगा सर. बट व्हाट पीपल फॉरगेट हियर इज पीपल से कि मैंने क्लाउड ले लिया या मैंने एंटीवायरस ले लिया बट एंटीवायरस को चालू ही नहीं रखा, देन अगेन क्लाउड विल नॉट वर्क सर बेसिकली. सो यस क्लाउड इज बेसिकली अ मेन्यू. आप क्या क्या मेन्यू सिलेक्ट कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है. हाँ सचिन जी, एक मतलब फ्यूचर के लिए एक और प्रोग्राम आपको करना चाहिए कि क्योंकि कई सारे बॉम्बे में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कलकत्ता में भी है, वो लोग ने, जैसे मैं भी क्लाउड में माइग्रेट कर गया हूँ. तो अब हमारे लिए एक एडिशनल और क्या, अभी तक तो आपने बताया कि चलो सर्वर लेवल या अपने लोकल ऑफिस में, पर अब हम क्लाउड के लिए स्पेसिफिक क्या सिक्योरिटी हमको फॉलो करना चाहिए, वो भी थोड़ा गाइड कीजिए ना आगे नेक्स्ट सेमिनार में. हाँ ठीक है. बट सर मैं अभी अभी क्या आपके लिए सच्ची बोल दूं कि हम्म. आप खाली है ना, खाली मैं आई ऑलवेज टेल ऑल द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लोज योर आईज फॉर 30 seconds and imagine that your server has been infected with a ransomware. Where is your backup and how good is your backup? I've already faced a ransomware and it was really, मैं बैकअप ही जो है मुझे बचाया था, नहीं तो मैं पूरा फिनिश हो जाता एकदम. हाँ बस मैं हमेशा इसके लिए यही बोलता हूँ सर, सबको यही बोलता हूँ कि आप खाली इमेजिन द वर्स्ट करो और फिर आप सोचो कि आपका बैकअप कितना दिन पुराना होगा सर, मतलब बेसिकली उतना आपका लॉस है. एंड मतलब यू नो आई होप दैट मच दैट इफ दैट इज द लॉस दैट यू कैन बेयर देन इट्स गुड इनफ, देन यू आर सेट basically. I have a request here. I just taken a cue from Sanjeev ji's word that 95% of chartered accountants are still doing paperwork and keeping their records on paper. The only factor which is actually affecting is that the confidence on the securities on cloud and all the internet-based softwares we have. So how we can improve on this so that we can have that confidence and security in mind. Even the session is all about that actually. अंकित, ये सोच की बात है. आई थिंक ये कॉन्फिडेंस खुद से लाना होगा, वो माइंडसेट खुद डेवलप करना पड़ेगा. जब उसको सामने दिख रहा है दिस इज अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उसको खुद से इस चीज को डेवलप करना पड़ेगा. हाँ, पर एक चेकलिस्ट बनना चाहिए कि डूज एंड डोंट्स का, कि व्हेन यू हैव माइग्रेटेड टू क्लाउड, हाउ दीज इज यू शुड बी केयरफुल. लाइक आप जो भी एक्सेस ले रहा है वो मैक आईडी बेस्ड ही हो, हर कोई एक्सेस नहीं कर पाए आरडीपी में. तो एक चेकलिस्ट बनना चाहिए, मतलब ये एक मेरा व्यू है. Even since very senior CAs are in the seminar, if you can make a presentation to ICAI to have certain kind of a course available to the team or ICAI, so that CAs can be used. अंकित, ऐसे कोर्स है, सिक्योरिटी के ऊपर काफी कोर्सेज है. Okay. He is also a regular faculty in Institute of Chartered Accountants of India. Okay. By that course, we can educate ourselves or our team so that we can have this kind of accessibility, right? Absolutely. So coming to cloud only, what I have observed or what's why my viewpoint I would like to share with Sanjeev ji as well as Sachin ji, if they agree that in India we don't have the network as good as we have in other countries, whereby in metro cities also right now we find that a lot of technical difficulties are coming in with respect to connectivity issue. Now if we completely move on to cloud-based accounting and we find that we are held up with internet connection, then I don't think we'll be able to even work at that point of time. So being I treat myself to be a tech savvy person, but still I haven't opted cloud 100%. I keep my server on cloud based as a backup, wherein if I require any data outside my server or outside my office, I can access that. But if it is no internet connectivity, then also through LAN I can work. So I just want if your viewpoint on the same, Sanjeev ji and Sachin ji. See, I don't see network as a challenge, Naveen. Like आज के डेट में अच्छा इंटरनेट, अगेन इट्स अ क्वेश्चनेबल इश्यू कि आज हम मेट्रो सिटी में हैं और अगर So just to interrupt, keeping in mind also the cost factor as an MSME chapter, keeping that into viewpoint, sir. या सो आज के डेट में क्लाउड इज वर्किंग ऑन अ वेरी थिन क्लाइंट. लाइक आज हम लोग जो भी एप्लीकेशंस यूज कर रहे हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, वी आर ओनली ऑन एयरटेल ब्रॉडबैंड. 1,000-1,200 रुपया महीने का लगता है एक कनेक्शन का.
and we get unlimited internet, हम अपनी ऑफिस को 2 या 3 इंटरनेट कनेक्शन लेके 25 से 30 मशीन आराम से चला पा रहे हैं. I think that's the peanut for us. Again, ये metro city की मैं बात कर रहा हूँ. If your challenge is related to remote areas or village areas, yeah, I agree with you. But आज के डेट में metro cities में connection issues नहीं है. और अगर है तो बहुत कम है. और अगर अपने parallel backups रखे, I'm not talking about leased line connections and very costly affairs. Broadband connections are good enough to serve our purpose to start with. बट अभी अम्फान में वी हैड रियली हैड वेरी बैड टाइम, मतलब हालत खराब हो गई थी सबकी. हाँ, अम्फन में हुई थी. यस, अम्फन वाज द ओनली डे व्हेन जब हम भी इम्पैक्ट हुए थे. कम से कम एक हफ्ते के लिए हम लोग भी इम्पैक्ट हुए थे. बट आज मैं लास्ट 4-5 years आई वाज नेवर इम्पैक्टेड सो फार एज नेटवर्क कनेक्शन इज कंसर्न्ड. और सबसे अच्छी चीज क्या होती है ना, जब आप cloud में जाते हो नवीन, like if I talk to you about the experience of QuickBooks, Zoho and all these online accounting software, बहुत लाइट होते हैं वो. Like they get load so faster, उनपे कुछ इमेज नहीं होती and they are so thin. तो वो बहुत फास्ट, बहुत कम इंटरनेट में भी वो काम हो जाता है. Like you can even do your accounting on mobile. So अब अपने को ये सोचना है convenience, speed and security. तो ये एक बैलेंस करके चलना होगा. मतलब सारी बात सचिन की नहीं सुननी है जो मैं बोलता हूँ. कुछ कन्वीनियंस भी देखना पड़ेगा, कुछ सिक्योरिटी भी देखनी पड़ेगी. Coming to security point only, sir, what we have understood that right now, what I believe that only 20% or 10% of the people are tech savvy with respect to this, because Totally agree. understanding this thing is very difficult. जो आपके Very पास खुद के पास है घर में, आप उसको सिक्योर नहीं कर पा रहे हो. Now if you go and keep your data in a cloud and you don't understand that where to keep your passwords, where to secure yourself, what is two-factor authentication, what is OTP based accounting, how frequent you should change your passwords, ये सब के नॉलेज अभी भी आई थिंक इट्स वेरी वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दिस. So इसमें क्या होता है ना नवीन, like the way I will talk as a layman only, कि अब अगर हम डेटा सिक्योरिटी, डेटा को क्लाउड में लेके जाते हैं, तो हम अगर खुद का सर्वर ले, खुद से उस पर पूरा सेटिंग बनाए, खुद से उस पर 2-way फैक्टर डालें, then I agree with you. बट अगर हम शेयर पॉइंट में जा रहे हैं, अगर हम जी स्वीट के उसमें जा रहे हैं और अगर हम उसका बैकअप सर्विस ले रहे हैं, उसके मेन्यू में और 2-3 ऑप्शंस ऐड कर ले रहे हैं, अपनी प्राइसिंग के अपने मेन्यू को ऐड कर दे रहे हैं, सो दे आर मच मोर हार्डकोर प्रोफेशनल देन अस. वो अपना पैरेलल बैकअप हो रहा है, पैरेलल मिररिंग हो रहा है, एंड दैट गिव्स अस मोर सिक्योरिटी देन कीपिंग द डेटा इवन ऑन ए लोकल मशीन. सो हम अगर मान लो खुद का एक सर्वर डिप्लॉय कर रहे हैं, जिसको कहते हैं ना इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस या प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, वहां पर हमें थोड़ी टेक्निकल नॉलेज चाहिए. बट अगर हम सिर्फ क्लाउड एज अ सर्विस लेते हैं तो हमें उतनी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं. पूरी मेन्यू बेस्ड है, पूरा डिफाइंड है. लाइक इफ यू जस्ट स्टार्ट विद माइक्रोसॉफ्ट एंड जी स्वीट, आई थिंक उनके पास बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो एक इजी टू गो, इजी टू यूज में अपने काम कर सकते हैं. And that's the first beginning. देखो क्या है ना, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी. अगर हम ये डर के रहेंगे और ये सोचेंगे कि हमारा क्लाउड में डेटा गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो कहीं से बिगनिंग होगी. उससे कन्वीनियंस कितना बढ़ रहा है, और उसमें आप बैकअप प्रोसेस जरूर रखो, मिररिंग प्रोसेस जरूर रखो, 2-way फैक्टर उसमें ऑटोमेटिकली एनेबल्ड कर सकते हो आप, और अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखो. आई थिंक दीज आर बेसिक थिंग्स व्हिच वी ऑल नीड टू डू टू स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम देयर, एंड कीप ऑन इम्प्रूविंग ऑन दैट. उसको अपग्रेड करते जाओ और बेटर करते जाओ और बेटर करते जाओ. Like their concept like LastPass, I don't know many of you know about it or not. अब पासवर्ड के वॉल्ट आ गए, तो अगेन फ्रॉम सचिन पर्सपेक्टिव, अगर मुझे उस पासवर्ड वॉल्ट का एक्सेस मिल गया तो मुझे तो खजाना मिल गया. लेकिन वो भी इतना इजी नहीं है, उसमें भी आप 2-3 फैक्टर ऑफ ऑथेंटिकेशन रख सकते हो. कहीं ना कहीं तो जाके आपको एक बैलेंस करना पड़ेगा बिटवीन सिक्योरिटी एंड कन्वीनियंस. यस सचिन, योर व्यू. नहीं sir, you're right. Basically, just somewhere down the line you will have to start. Matlab, see, I always say that in the next 5 years robots will walk, drones will fly, and electric cars are going to come. मतलब हम लोग को टेक्नोलॉजी के साथ कदम बढ़ा के चलना ही पड़ेगा. Okay, and now we have to just understand that how do we smoothly move ahead with technology and thereby not compromise on our security aspects also, because as a chartered accountant we are dealing with our clients' data also, basically. Right, sir. So there was one question from Prasin Paul. He was saying that is Face ID or fingerprint recognition safer than typing out text passwords in mobile devices? I think a lot of Android devices are coming nowadays where we have a fingerprint scanner with it. So should this Face ID and fingerprint scanner should be used?
Sir, मतलब देखो, honestly speaking, I am not a very big fan of a fingerprint recognition thing itself. Okay, this is a very long shot, but in our cyber security domain, we understand that ये आगे के बहुत बड़े crimes का अभी से इन लोग foundation set कर रहे हैं. People have forgotten that we are giving our biometrics, our priceless biometrics for free on our phone. In India, our biometrics are linked to our Aadhaar card, and Aadhaar will be linked to all our financial data in the future, right? तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर हो सकेगा ना सर, हो सकेगा तो ट्राई नॉट टू गिव योर बायोमेट्रिक्स ऑन द फोन, बिकॉज अनफॉर्चुनेटली देयर इज नॉट ए सिंगल थिंग इन दैट फोन दैट बिलोंग्स टू इंडिया. आप कोई भी फोन उठाओगे ना, कोई भी फोन, आईफोन भी उठाओगे ना, उसमें एक चीज नहीं है जो इंडिया की है, एक चीज जो इंडिया के सर्वर में भी नहीं जा रही है आज की तारीख में. इतना हालत खराब है अपना. मतलब यू टेक वीवो, ओप्पो, वन प्लस, ये सब मेड इन चाइना है. So China is the king of hardware and US is the king of software. So you take Android, Windows, Apple, Facebook and everything like that. So madam, I do not have much time to explain, but I generally not a big fan of putting biometrics on the phone to lock the devices or to as a you know as an option against putting in the password. It is like you're getting more convenience, but I would not like to have my biometric given out just because I do not want to put in my password करके वैसे. Of course it's a better option security wise, but जब मैं वो biometric डालूंगा ना मेरे फोन के ऊपर, मुझे पता है कि पीछे 50 एप्लीकेशन है जो खाली वो परमिशन के लिए वेट कर रहे हैं कि तू कब बायोमेट्रिक डाल और कब हम वो बायोमेट्रिक की फाइल उठा ले. इसके लिए मैं थोड़ा अगेंस्ट हूँ इसके बस. Got your point. I think we still need to have a bit of more security with respect to this fingerprint scanners. I just want a clarity on this point. Do you mean to say that when we are using our biometric on our Android phone, it is getting saved somewhere and that can be accessed by any other application when our phone get compromised? हाँ आराम से. वो तो डेटा ही हुआ ना सर, वो तो सेव हो रहा आपका डेटा. Okay. इट्स जस्ट अ डेटा फॉर देम. तो वो तो एक आपका कॉम्प्रोमाइज डेटा तो कहीं सेव हो रहा है आपका बायोमेट्रिक डेटा. Okay. Got it. It's very risky now. I've never think of that way. That perspective was not there. Thank you. Any questions from the So audience? one more thing with respect to using this Android devices, we find nowadays a lot of applications are coming in, though trusted and downloaded from Google Play Store, but they ask you to log in, and most of the time they give you options to either log in through your Right. GPay account or through Facebook account. So is it advisable we use those IDs, or we should use a separate login ID password for each app? Sir, if you can create separate login ID password, but that will be too difficult to remember. So create a separate Facebook account, एक time pass वाला Facebook account, and जितनी बार भी कोई बोलेगा login via Facebook, use that other Facebook account and login कर दो. Okay, sir. Any more questions from the audience? One more thing, just to understand from Ankit, your voice is not audible. Sorry. hello, am I audible? Yes, Ankit, please. Yeah, actually, I was just taking a cue from the last question. Is that whenever we were downloading some application to our mobile, number of permissions got to give. It's mandatory kind of a thing. Even WhatsApp takes lots of access and permissions to get downloaded. So how safe is to download such kind of an application which are widely used, which is the application which we cannot live without. Like even WhatsApp is one of them. So what are your views and suggestions for this kind of application? नहीं मतलब सर देखो, जो परमिशन है वो तो देनी ही पड़ेगी इंस्टॉल करते वक्त, तो दैट यू कैन नॉट एस्केप, अदरवाइज वो इंस्टॉल नहीं करने देगा. हाँ, बट इंस्टॉल करने के बाद इफ यू फील दैट दिस ऐप को ये परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यू कैन गो अहेड एंड रिमूव दैट परमिशन आल्सो. Okay, but you mean to say that at a time of installation you can give it, thereafter you can remove it when when you find it not comfortable enough. Yes, yes. But will that application run without that permission? Yeah, नहीं, अब yeah. डिपेंड करता है कि कौन सा नीडेड परमिशन है, कौन सा नहीं है. अब जैसे आप कैम स्कैनर इंस्टॉल करोगे तो वो आपका फोटो और ये कैमरा को तो एक्सेस मांगेगा ही. अगर आप वो नहीं दोगे तो वो चलेगा ही नहीं. Okay.
ये डिपेंड करता है कि आपका वो रिक्वायरमेंट उस एप्लीकेशन के लिए कितनी जरूरी है. अगर वो जरूरी नहीं है, वो जस्ट एक पर्पस के लिए ले रहा है, तो आप उसको डोंट अलाउ कर दो. Okay. So you need to choose it, what you want to go away with. Okay, thank you. Sachin, there's one more question from my side. We find that today's world we use net banking a lot, either through mobile or through our desktop or laptop. We have heard about a lot of cyber crimes wherein we visit a page which is looking like a bank's page, but it is not actually a bank page. We key in our ID and password, and then we understand that it is a fake website, or sometimes we don't understand also. So, is there any mechanism through which we can identify or locate wherein the website which is coming in front of our laptop or desktop is a genuine bank website or not? Yes, sir. So there are 2 or 3 steps to do that. Basically, what I'll do, I'll share you the PPT for that. How to identify a fake website. Basically, now you need to look for the HTTPS sign, the padlock sign, and the certificate thing. These are 3-4 things which I'll share it with you. I think this will be helpful, Sanjeev ji, to identify in this technological world. नहीं, उसमें सचिन का हमेशा एक प्रेजेंटेशन रहता है. आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव टाइम, बट आप अगर उस पर ध्यान से देखोगे तो कुछ स्पेलिंग, जैसे आईसीआईसी बैंक भी अगर होता है ना, तो उसमें एक स्पेलिंग मिस्टेक होती है, या कुछ ना कुछ उन लोग लिंक में हम लोग ध्यान नहीं देते. Just from banking side, if they have a few protocols, I think, through which we can look forward in our website before entering our ID and password. I think we should directly go to the bank and do the thing. Like rather than going through the link, हमको directly बैंक का वेबसाइट में जाके फिर करें, तब वो ज्यादा सेफ है. कभी भी. Always. Agreed, sir. But sometimes what happens, your laptop is having a ransomware or something like that, where you type a bank address, but it gets diverted to a false website. So physically viewing that website and understanding the key points, I think would be better. I think Sachin ji will be better to मतलब सर explain. जनरली the PPTs जो हम लोगों ने बनाई है ना, it is just best ways to identify fake websites basically, you know. So there are times when you could be end up clicking on the link, या आप जैसे बोल रहे हैं आप टाइप करोगे और वो उधर redirect हो जाएगा. Irrespective of both the matters, at least if we know na how to identify fake websites, that will always help us. Basically, that knowledge will help us somewhere down the line. Sachin, you share me that PPT, I'll share it to the organizers. Yes, sir. Yes, sir. सर इस कनेक्शन में हम लोग जैसे कुछ एक जैसे ये सब जो पेमेंट्स वगैरह करते हैं, कुछ परचेज कर रहे हैं ऑनलाइन, तो ये बेसिकली एक पेइंग वेबसाइट में जाके खुल जाता है, उसमें अपना कार्ड्स का डिटेल वगैरह देते हैं या नेट बैंकिंग यूज करते हैं. ये सारा कितना सेफ है या इसको कैसे सेफ रख सकते हैं, क्योंकि एक बार तो ऑनलाइन डेटा हम लोग का चला ही जाता है इसमें. मैम देखो, पेमेंट जो होता है ना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं पता है, अभी 2 अलग अलग चीज कर रहे हैं बेसिकली. लाइक मेरे को कभी भी अगर नेट बैंकिंग करना होगा ना, तो मैं लैपटॉप यूज करता हूँ ताकि ओटीपी मेरे मोबाइल पे आए बेसिकली. और ये जो जितने भी वॉलेट्स है ना छोटे मोटे, जैसे गूगल पे, पेटीएम, भीम, ये सब हो गया ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक कार्ड अलग से रखा है. ओके, जिसकी लिमिट उतनी रखी है जितना मेरा लॉस सेंड करने का कैपेसिटी है. मतलब मैंने कार्ड एक बैंक से एक कार्ड ले लिया, जिसकी लिमिट मैंने 30,000 रुपये सेट करके रख दी है. अब लूट के कोई मेरे को 30 का ही लूट के जाएगा, और वो 30,000 रुपये का कार्ड ही मैं पूरी दुनिया में घुमाता हूँ. ओला, उबर, वाइबर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, आईआरसीटीसी, छोटा मोटा खरीदी, होटल में गए, डिस्काउंट, ग्रोसरी स्टोर में खड़ा हूँ, किधर भी तो वही कार्ड यूज कर रहा हूँ मैं वैसे. तो दैट इज बेसिकली सेफ्टी अपने को ही लेके रखनी है इससे. क्योंकि एक्चुअली कैसा है ना मैम, के पॉइंट हियर इज, आई ऑलवेज से नोबडी विल हेल्प अस व्हेन आवर ओन मनी इज गॉन. एवरीबडी विल ट्राई टू पुट द ब्लेम ऑन ईच अदर ओनली. So it is up to us only whether we should we should do our own security. We should not be, because it is our money. Why should we be dependent on others that oh मेरा पैसा वो सिक्योर करेगा. ठीक है, बैंक उसका है, बैंक है, बट फिर भी पैसा तो मेरा है. तो it is one of my responsibilities also to ensure that I do a proper security of it. Okay, ठीक है सचिन जी. Sanjeev ji, one more question was there from Sandeep Tibrewal ji. I think you have already covered it in your slide, but if you can still go through. He is asking, please suggest some basic softwares and security measures which are a must in every CA office.
See, software's basic security related तो backups है, authentications है और अपने password policies को कर सकते हैं. There are no such software as such called software for security. For office management, for cloud management, वो सब के software हो सकते हैं. But I think security के लिए जो अपने slide में वो slide भी share कर दूंगा जो to dos है. But I think more important is to understand कि हमारा data कहाँ है, कितना important है, उसको हम कहाँ रखे हुए हैं. Now how I can secure it, and the way to secure it is, I think the best prevention is to take up, number one, and to secure it either by giving multi-level passwords and two-way authentication. And मैं हमेशा recommend करता हूँ to go on cloud and take all the cloud services, the best cloud services, and start with a journey. जो जैसे नवीन ने कहा था कि मैं एक सपोर्ट के लिए स्टार्ट किया हूँ, एक स्टार्ट आप लो कि कुछ डेटा आप क्लाउड में रखो, तो वो आपको हमेशा सपोर्ट करेगा. कभी भी कुछ हुआ तो कुछ डेटा आपके क्लाउड में, कुछ आपके लोकल में. स्प्रेड योर डेटा एंड डोंट कीप अनवांटेड डेटा विथ यू. जो डेटा आपके काम का नहीं है, आपको, जैसे हम लोग अपने क्लाइंट्स का सिर्फ प्रोसेस करते हैं, उसके बाद उनका सोर्स डॉक्यूमेंट, आउटपुट सब उनको वापस कर देते हैं. So we are like just doing the work for them. We don't own the data. We generally access their servers, we access their cloud, and we do work for them. हम उनके डॉक्यूमेंट्स अगर मंगाते हैं, उनके बैंक स्टेटमेंट्स मंगाते हैं या उनका कुछ भी मंगाते हैं, हम काम करके सब कुछ उनको वापस कर देते हैं. So these are the I think it's more of a mindset. It's more of the objective oriented approach जो हम लोग को लेना पड़ेगा. उसके साथ कुछ टूल्स और मेजर्स और सेफ्टीज ऐड करते जाने पड़ेंगे. एक और है कि आप अपने पुराने डेटास को आर्काइव करके रख लीजिए. एकदम लास्ट 2 years का ही डेटा, क्योंकि वही काम आता है. बाकी सारे डेटास को आप एकदम हटा दीजिए अपने सर्वर से, उसको आर्काइव करके. एक्स्ट्रा डेटा इज नो डेटा. इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर लोड, इट इज गोइंग टू इंक्रीज योर प्रेशर. वो आपको कभी भी हेल्प नहीं करेगा. जो डेटा आपको रेलेवेंट रखते हैं उसी को ही रखिए, बाद बाकी आप हटा सकते हैं. I think this archiving of data is also a big chapter. I think most of the people understand archive, but how does it work and how to find files from the archive folder is still something which most of the people does not understand. आर्काइव तो कर दिया, ठीक है, लेकिन अब आर्काइव में आपको फाइल ढूंढना पड़े तो वो कैसे ढूंढ के आप रिट्रीव करोगे, एंड व्हाट सॉफ्टवेयर टू बी यूज टू आर्काइव योर डेटा. आई थिंक अभी भी काफी जनों को उसके बारे में आइडिया नहीं है. इफ यू एग्री विथ मी संजीव जी. नहीं, तो वहीं पर ही मैं बता रहा हूँ. जैसे अब मैं शेयर पॉइंट की बात करता हूँ, अगर आपका वहां पर लॉजिकली फाइल सारे स्टोर्ड हो गए तो आपके पास एक सर्च स्क्रीन मिलती है जहां पर आप सिर्फ नाम टाइप करोगे, वो किस फोल्डर में फाइल पड़ी हुई ना वो खोज के निकाल देगा. मैं जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ. सो आज जब तक आप उस चीज के बारे में जानोगे नहीं, उस चीज को स्टडी नहीं करोगे, आप यूट्यूब में जाके शेयर पॉइंट की बेनिफिट नहीं देखोगे, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एंड इट्स एन अमेजिंग प्रोडक्ट. आप जी स्वीट का प्रोडक्ट नहीं देखोगे. तो आज वहां पर क्या हो रहा है कि आप डेटा कहीं भी रखे हो, आपको बस अगर क्लाइंट का नाम मालूम है या कुछ भी उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मालूम है. चैलेंज कहाँ पर है कि हम अपने फाइल नेम से ठीक से नहीं रखते हैं. हमारी फाइल नेम लेट्स से एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकम टैक्स फॉर 1920 है, तो हम उसका नाम कुछ ऐसा रख रहे हैं तो हम कभी उसको खोज ही नहीं पाएंगे, हम उसको एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे. अगर हमने कुछ भी कीवर्ड्स रखा है तो अगर हम वो कीवर्ड भी सर्च में टाइप करेंगे तो वो किसी भी फोल्डर में रखा हुआ वो खुद निकल के आ जाएगा. जस्ट लाइक द वे वी सर्च आवर ईमेल्स from a search button, उसी तरह से अपने फाइल भी सर्च कर सकते हैं. One more question related to our CA profession only, sir, where Sunil Singh ji is asking, do you think our Disha course should also incorporate this new security measures? सुनील जी, वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन, एंड आई जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू. जब मेरी प्रोफाइल पढ़ी गई थी तो बताया गया था आई एम अ कोऑप्टेड मेंबर ऑफ डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड. अभी हम लोग ईसा 3.0 लॉन्च कर रहे हैं. ये आपके पास आएगा और ये बहुत ही एडवांस्ड है. इसमें सिक्योरिटी के काफी सारे चैप्टर्स इंक्लूडेड है. एंड आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड डीसा जो ईसा 3.0 जो आ रहा है उसके आप एक बार गूगल में सर्च कीजिएगा, आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा. So that is recently announced by Digital Accounting and Assurance Board of ICAI, which is coming up hopefully from September 1st. Any more questions from the floor? I think for me, sir, this will be an endless thing, because being a tech savvy person, I have a lot of questions in my mind which keeps coming up.
So we'll have sometime another session with respect to technology. To sum up this meeting, I would say that Sachin Dedia ji has very much explained that how your passwords which are being saved in your laptops, or if you have memorized it in your browser and your laptops get some problem and you share it with your local hardware vendor or your service engineer, those data can be hacked. So it's better to clear your browser histories and passwords which are being saved. Secondly, using some softwares to understand that how many people are using your net within your office premises. Keeping apart the sharing the internet with your wife and waiting for the result, which he said that if you want to slow down the access of your wife, and that has to be done only after you had your meal, so that you are not deprived of that. Secondly, it's a very best thing so that you can spy on yourself, basically who is accessing your internet device and who is not. We should have a control on that, on those wireless devices. A lot of softwares which we should not download on our Android mobile phones. Coming to Sanjeev ji, I think what we should follow is, I think in today's scenario, no pirated softwares in any of our servers, because using pirated softwares is inviting viruses in our system directly. If we have all licensed softwares, I think they all have their own backups, security measures which protect your system. Saving files in a very organized manner so that you can take a backup of it if you lose your data. Searching of files will be easier, and also moving to cloud version. For me, this is something which all the new generations who is very much adaptable to cloud facilities and understand about this, they can straight away move there. As for my experience, I'm since from a both backdrop, means from a old generation as well as new generation. It is still time for me to grab this cloud server thing. Adopting to G Suite, which is giving us a lot of flexibility in organizing ourselves. Office 365, which I would say I have started using it and I find it very useful for a CA chartered accountant. Using the Word, Excel, PowerPoints, which are always updated. All new features are there and it's not costly enough. And it is also offering you a cloud space, which I'm using right now to keep my data files over there so that I can access it from anywhere if required. And going to Zoho online accounting software, where if anybody wants to keep its accounting on online cloud, they can move into Zoho. Thank you, sir, for all these things. Now I'd request Sarojji Swaikar to offer a vote of thanks to Sanjeev ji and Sachin Dedia ji. Over to you, Sarojji. Thank you, Naveen. Sanjeev ji and Sachin ji, a very heartful thanks to you, both of you, for a detailed updation on this subject. जैसा कि हम लोगों को पता है, we are not all used to all these technical things. जिस तरह से आप लोगों ने कंट्रोल के बारे में बताया, सेफ्टी मेजर्स के बारे में बताया, न्यू चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए बताया, क्लाउड बेस्ड एक्टिविटी पे हम लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए बताया. तो नॉर्मली क्या हमारे सीएज में कुछ तो अडेप्ट कर रहे हैं, बाकी मेजोरिटी में हम लोग काफ़ी दूर हैं इनसे. तो आप लोगों का जो सजेशन रहा, जो बेनिफिट्स और सब आपने बताया, उस चीज़ को लेके वी हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज ऑन दिस, और हम आगे भी ट्राई करेंगे इस चीज़ को अडॉप्ट करने के लिए. आई वंस अगेन थैंक ऑन बिहाफ ऑफ न्यूज एक्सचेंज एंड ऑल द मेंबर्स प्रेजेंट हियर. वेरी हार्टफुल थैंक्स टू बोथ ऑफ यू. थैंक यू सो मच. Thank you. नवीन. Sir, thank you. Thank you, Sachin ji. Thank you, Sanjeev ji. Thanks all the participants. We are Thank you ending all the so session. much. Thank you.